Okay, guys. Hello, guys. Welcome to the second day of our workshop 3. Let's build a blog app. This might be our second last day of the workshop, and tomorrow might be our last day of the workshop. So, in yesterday, we learned about how to create a recycler view. We also learned about how to, add data source and how to add adapter to our recycler view. And also, we talked about what is content. I'm sorry, I just got a call. Yeah. So yesterday we learned about recycler view. We learned about how to add our recycler view and what are the block items. And we learned about what is adapter and how to inflate the layout. And yeah. So today the today agenda of the session will be that today we will add the horizontal recycler view. Yesterday we added our only vertical recycler view. This time we will add horizontal recycler view. We will also add the images so that instead of showing the title and the content of the blog, it will show us the image and the title of the blog. And also today we will learn about the intent. Okay. So first of all, let's just go and start your application. So yesterday we only completed this much only. Yesterday we only created a recycle view with car view showing the blog title and the blog content. Okay, so once you guys are ready on that side, we can proceed. Okay, so let me reshare my screen. So yeah, so this is what we did till yesterday. Let me just yeah. So this was our initial stage of project. Today we will continue from here. Okay, so once you guys are ready at your side, just type yes so that we can proceed. And if you're watching this on YouTube, just forward 20 seconds. Okay, if you all are okay from that side, we can start. Okay, yeah, done. So to add image in our blog, what we need to do is that now first thing we need to go in our model. Okay, first we need to go in our model and we need to again add a new field called, just a minute, my PC hang. Yeah. So what we need to add is that now we need to add a new field called image. And also we need to again give this image type as integer. And as you guys know, yesterday we saw that why we need to give our model each and every field of our model integer data type. Why? Because all the resources of our file will have are denoted by the memory letter or what we say an integer. Okay. So the second thing what you need to do is that now go in any of your browser. Yeah. I'm just okay. Let me zoom. Why I need to every time zoom in whenever I restart it. Um, editor size 23, I guess. Yeah. Okay. And then yeah. So what you need to do is that now you go in this website called freepick. freepick.com. Okay, let me share this in the chat box also. Okay. So go in this website freepick.com and over here you can find any images for free. Okay. So what I'm going to do is that I will type over here scenery. Scenery. Let's see which scenery. Yeah. So choose any scenery of your type. I will also just choose any scenery I want. Okay. So okay, let me go with this one. So just click on this file. Okay, just click on this file and click on download. So this will download the image and yeah, free download. Okay, so once this image is downloaded, just rename it. Okay, so show in folder and let me rename this file as scene. Okay. So once you guys are done with images, not just once you guys are done with selecting images, just type yes so that
I can show you how to drag and drop images in your drawable folder of your Android Studio, because that part is, a bit of trickier part. So once you are done, just tell me yes. If you're done, selecting images from your side. Yeah. Okay. So क्या करो ना, just select the image and drag and drop it to your layout. ठीक है, तो आपका drawable का folder होगा. Just drag your images and drop it in your drawable folder. Once you drop it there, ना, it will ask you where do you want to store your file. So let it by default in our drawable version 24. ठीक है, and then click on refactor. Once you click on refactor, ना, you will see that your image is been added successfully to your ड्रॉएबल फोल्डर. ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा सीन डॉट जेपीजी आ गया. सो एक बार आप लोग इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, फिर हम दोनों तो आगे बढ़. इशू आता है, लोगों को बहुत इशू आता है जब वो इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. ये इजी है, बस ड्रैग करो और ड्रैग करके चुपचाप जो है ड्रॉएबल वाले फोल्डर में पेस्ट कर दो. जो बाय डिफॉल्ट सामने आएगा पॉपअप में, जस्ट क्लिक ऑन रिफैक्टर एंड इट्स डन. ठीक है, सर थिंकिंग कि आप लोग का वो साइड में हो गया है. एंड हुआ कि नहीं हुआ. सो द सेकेंड थिंग इज ना कि आप जिसे देखें, जैसे हमने ब्लॉग डॉट केटी जो हमारा मॉडल था, हमने उसके अंदर एक नई फील्ड डाली. क्या था? वॉल इमेज. ठीक है, हमने उसके कंसिडर में एक नया डाला हमने पैरामीटर, तो होता वॉल इमेज. तो यहाँ पे डेटा सोर्स जो है हमारा डेटा सोर्स, इस पे यहाँ पे वो एरर दे रहा है. वो बोल रहा है कि भाई साहब ब्लॉग जो है हमारा, जो ब्लॉग हमारा मॉडल है, इसके अंदर एक फील्ड गायब है. कौन सी फील्ड गायब है? वो है तुम्हारी नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर इमेज. अभी ये कैसे पास करेंगे ना, जस्ट टाइप कॉमा एंड देन टाइप ठीक है, सॉरी फॉर दैट. हाँ, सो क्या करो, टाइप आर डॉट ड्रॉएबल. ठीक है, आर डॉट ड्रॉएबल डॉट जो भी आपको इमेज का नाम होगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज का नाम क्या है, मैंने अपने यहाँ इमेज का नाम रखा हो क्या, सीन. सो यहाँ पे जैसे आपने लिखा, मैं लिखा आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, तो इसे ऑटोमेटिकली मुझे ला दिया सीन. तो क्या करो, सीन में क्लिक करो एंड एंटर. इससे क्या हुआ, इससे जो आपकी इमेज थी, कौन सी हमारी इमेज थी, ये सीन वाली जो जेपीजी की इमेज थी, ये अभी हमारे डेटा सोर्स में आ गई. सो डू दिस जॉब अगेन, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट कंटिन्यूअसली. ठीक है, पेस्ट, अरे यार, पेस्ट 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 एंड so अभी क्या हुआ, नाउ वी हैव आवर डेटा सोर्स एंड उस डेटा सोर्स में क्या है, उस डेटा सोर्स के अंदर ब्लॉक का टाइटल है, ब्लॉक का कंटेंट है एंड 7 इमेज. ठीक है, तो अभी हमने हमारा मॉडल को तो सही कर लिया. वी एडेड, so what we did first was that we added image in our model, and then since हमारे मॉडल के अंदर एक इमेज का पैरामीटर नया आया, so that's why we changed our data. so अभी हमारा डेटा सोर्स रेडी हो गया, जो हमारा आइटम था, अभी हमारा आइटम रेडी हो गया. अभी अगली चीज जो हमें चेंज करना है वो है हमारा ब्लॉक आइटम डॉट एक्सएमएल. इसके कहना क्या कहना था हमें कि जो नीचे वाला टेक्स्ट व्यू है ना, तो जो ये नीचे डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट व्यू है, इसको जस्ट कॉपी करो, नहीं पूरा इसको सेलेक्ट करो एंड इसको हटा दो. तो ये अभी चला गया. और फिर यहाँ क्या करो, अभी सिंस हम लोग का जो फाइनल ऐप था, हमारा फाइनल एप्लीकेशन था, उसमें कैसा था, स्क्रीन. सो हमारा फाइनल जो ऐप था उसमें कहता था कि इमेज के नीचे टाइटल था, है ना, इमेज के नीचे टाइटल था. सेम थिंग हमें यहाँ पे करना पड़ेगा. हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है ना, इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर ही आपको लाना पड़ेगा नया टैग, कौन सा, इमेज टैग. ठीक है, यहाँ पर आया, हमें लिखा मैंने IMG. सो यहाँ देखिए जैसे IM लिखा, ऑटोमेटिकली इमेज व्यू आ गया. सेलेक्ट द इमेज व्यू. लेआउट विड्थ क्या होगी, लेआउट विड्थ हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी स्क्रीन खसीड़े, तो मैच पैरेंट. लेकिन लेआउट हाइट कितनी होगी, लेआउट हाइट होगी रैप कंटेंट. क्यों रैप कंटेंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि इमेज भी उतना ही साइज ले जितना साइज का और उसके अंदर की इमेज है. अभी इसके अंदर जो है मैंने जो है शायद पहले से करके रखा था, लेट मी सी मैंने क्या किया था. हाँ सॉरी, तो मैंने क्या किया था, सॉरी मैंने जो है इमेज व्यू का जो हाइट है, मैंने रैप कंटेंट नहीं किया था, आई जस्ट हार्ड कोडेड इट. हम हार्ड कोडेड क्यों किया, ताकि जो सारी की सारी मेरी इमेजेस है ना, उन सबका साइज सेम हो. ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट, मैं अभी आता हूँ.
ओके सो या सॉरी फॉर दैट। हाँ, और अभी इसके बाद जो है देखो हमने क्या किया, हमने इमेज का विड्थ स्पेसिफाई कर लिया, हमने इमेज की हाइट स्पेसिफाई कर ली। अभी एक चीज जो है वो इमेज व्यू का एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है स्केल टाइप। अब स्केल टाइप क्या है? स्केल टाइप ये है जो आपकी इमेज को स्केल करेगा। लाइक आप जो हो, जब अभी आप बाई डिफॉल्ट इसको अगर इसको ऐसा रन करेंगे ना, तो जो हमारी इमेज रहेगी ना, हमारी इमेज बीच में आएगी एंड उसके आसपास जो है पूरा का पूरा व्हाइट ब्लैंक स्पेस रहेगा। क्यों वो व्हाइट ब्लैंक स्पेस इसलिए रहेगा ना कि जो हमारी इमेज व्यू है, इट ट्राई कि वो इमेज को ऐसा डाले अपने व्यू के अंदर, इमेज व्यू के अंदर उस इमेज को ऐसा फिट करे कि इमेज जो है पूरी ब्लर भी ना हो और इमेज जो है कटे भी नहीं, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते नहीं, वी डोंट वांट कि हमारी जो इमेज है उसके आसपास पूरी व्हाइट स्पेस है। तो उसके लिए एक उसका एट्रीब्यूट है, वो है स्केल टाइप की इमेज को देखो स्केल कैसे करना है। सो बाय डिफॉल्ट इतने सारे अलग अलग आते हैं। पहला है सेंटर क्रॉप, कि इमेज को सेंटर में लाएगा एंड सेंटर में आने के बाद जितने भी उस इमेज का जो हाइट वाइट रहेगा ना, इमेज का जो भी जो पार्ट रहेगा जो इस इमेज व्यू के बाहर जाएगा, वो उसको सीधा क्रॉप कर देगा, ठीक है। दूसरा है वी हैव सेंटर, सेंटर में क्या करेगा, एकदम बीच में ला के रख देगा। देन वी हैव सेंटर इनसाइड, सेंटर इनसाइड में क्या करता है वो कि इमेज को सेंटर में रखता है, और अगर इमेज को कोई भी पार्ट इमेज व्यू के एक्सिट करता है तो वो उसको ट्राई करता है कंप्रेस करके उसको अंदर उसमें फिट करने के लिए, ठीक है। एंड वी हैव अदर थिंग दैट वी हैव फिट सेंटर, फिट एंड फिट स्टार्ट एंड अदर थिंग। सो व्हाट वी विल यूज है, वी विल यूज सेंटर क्रॉप, क्योंकि सेंटर क्रॉप थोड़ा काइंड ऑफ अच्छा लगता है। एंड देन वी हैव सेकंड थिंग इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर accessibility and so no, अभी अब जबकि मैं ये इम्पोर्टेंट फॉर accessibility क्या है। सो बहुत से अभी आपको मालूम है कि एंड्रॉइड के अंदर फीचर है जो बताता है कि जो ब्लाइंड पीपल रहते हैं ना, सो ब्लाइंड पीपल लोग अपना मोबाइल कैसे यूज करते हैं, वो लोग यूज करते हैं वॉइस स्पीकर, लोग जो है लोग वॉइस स्पीकर करते हैं, जो क्या बोलते हैं हमारा स्क्रीन रीडर है ना। सो ये इम्पोर्टेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी नो में इसलिए कि अभी कोई ब्लाइंड पर्सन हमारा ऐप यूज करेगा तो ऐसे 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 बार बार नहीं आएगा कि इमेज ऑफ दिस, लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी नो नहीं रखते तो हमारा इमेज बोलता है कि ठीक है भाई तू बता कि इमेज क्या है। तो फिर कैसा होता है कि इमेजिन करो। और दूसरी बात हमें ये मालूम है कि ये जो हमारे जो लाइक नो जस्ट द थिंग ऑफ रियल सिनेरियो, रियल सिनेरियो में हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी इमेज किसकी है, राइट। सो वो ना हटा, वो चीज को एनकाउंटर करने के लिए हमें बोलते हैं कि ठीक है भाई ये इंपॉर्टेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी नहीं है स्क्रीन रीड। तो क्या करेगा स्क्रीन रीडर, ये पढ़ेगा बोलेगा ठीक है भाई ये इमेज किसी काम की नहीं है। वरना क्या होगा अगर हम यहाँ पे हार्ड कोडेड करेंगे ना, तो स्क्रीन रीडर कैसा पढ़ेगा, बोलेगा इमेज ऑफ ब्लॉक वन, फिर उसके बाद हमारा टाइम पड़ेगा, फिर जैसे यूजर स्क्रॉल करेगा तो बोलेगा इमेज ऑफ ब्लॉक टू, फिर स्क्रॉल करेगा तो ना टाइम तो अजीब लगता है ना। तो उसके लिए हमने यूज किया है इंपॉर्टेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी नो। एंड देन लास्ट हम लोग ऐड करेंगे आईडी, ठीक है। तो आईडी हम क्या देते हैं, इसको आईडी देते हैं हम लोग लेट्स से ब्लॉग इमेज, ठीक है। सो हम आईडी देते हैं क्या, ब्लॉग आईएमजी, ठीक है। तो हम लोग ने हमने क्या किया, अभी हमने इमेज व्यू बनाया और इस इमेज व्यू के अंदर हमने आईडी डाल दिया, लेआउट बिट एंड हाइट सब डाल दिया, ठीक है। सो अभी क्या हुआ, हमारा डेटा बन गया, वी हैव क्रिएटेड अवर डेटा एंड वी हैव क्रिएटेड अवर व्यू होल्डर। अगली चीज क्या है, अगली चीज है वी नीड टू गो एंड एडिट अवर ब्लॉग एडिटर। से ब्लॉग एडिटर में है ना, तो सिंस हमने हमारे जो मेन था उसमें से हमने, यार कॉल क्यों कर रही है, जस्ट या। सो कमिंग बैक, सो अभी सिर्फ हम हमारे व्यू होल्डर के अंदर से हमने इमेज डिस्क्रिप्शन हटा दिया है ना, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला लाइन भी डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। वी नीड टू डिलीट दिस होल लाइन एंड तो ब्लॉग व्यू होल्डर से हमने व्यू हटा दिया एंड स्क्रीन फ्रीज ऑन मी। हाँ यार इट्स फ्रीज, नॉट अगेन।
अभी अभी दिख रही है स्क्रीन, अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? या सो हमें क्या बोला था, सिंस वी हैव रिमूव्ड our description text view from our view holder, so similarly we need to remove all these instances. So हमने उस view holder कहाँ यूज किए थे? We use our that view holder in our blog view holder. So blog view holder के अंदर से हम लोग ने उस description text view का हमने instance बनाए थे, and then on one view holder के अंदर हमने उस इंस्टेंस के टेस्ट के अंदर हमने हमारा कंटेंट रिसोर्स डॉट गेट डाले थे, है ना? सो सिंस अभी वो है नहीं, तो वी नीड टू डिलीट दिस टू लाइन. सो लाइन नंबर 24 एंड लाइन नंबर 33 वी नीड टू डिलीट. अभी क्या करना है ना कि अभी फर्स्ट थिंग है कि हमें इमेज का बनाना पड़ेगा इंस्टेंस, राइट? तो सिमिलर का लिखो वाल इमेज, लेट्स से हमें लेता हूँ क्या यहाँ पे ब्लॉग ब्लॉग img. ठीक है, ब्लॉग img क्या देगा? ब्लॉग img विल बी द इंस्टेंस ऑफ इमेज व्यू. ठीक है, इमेज व्यू इक्वल टू item view dot find view by id r dot id dot क्या था हमारा ब्लॉग इमेज. ठीक है, तो ब्लॉग इमेज. सो ये आपका माने में हमें कल से क्या चाहिए था, लेकिन अभी अगर जैसा हम लोग को टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने कैसा किए थे, हमने होल्डर डॉट टाइटल डॉट टेक्स्ट किए थे ना, इमेज व्यू के ना तो अलग होता है. तो इमेज व्यू के अंदर क्या करना पड़ता है ना कि आपको ऐसे ऐसा इमेज व्यू के अंदर कोई टेक्स्ट होता नहीं है. इमेज व्यू के अंदर अगर आपको इमेज को सेट करना है ना, तो इसके एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट का नाम है डॉट सेट इमेज रिसोर्स. ठीक है, जो नाम है वही काम है. ये क्या करेगा, जो इमेज है उसका रिसोर्स को सेट करेगा. ठीक है, तो कैसा लिखना है? वी नीड टू राइट होल्डर डॉट ब्लॉग इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स. अभी रुको, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसा कि ऊपर हमने क्या किया था, हमने लिखा था कॉन्टेक्ट डॉट रिसोर्स डॉट गेट स्ट्रिंग, है ना? हमें ये कॉन्टेक्ट डॉट रिसोर्स डॉट गेट स्ट्रिंग से हमने हमारे स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल के फाइल से हमने निकाला था टेक्स्ट, राइट? लेकिन इमेज को क्या हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा. ब्लॉक इमेज के अंदर अगर आपको इमेज के रिसोर्स सेलेक्ट करना, देखो ना यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे अगर हम लाइन नंबर 20 होगा अगर सही से देखिए, तो ये क्या कहता है, ये कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, ये उस कॉन्टेक्स्ट के रिसोर्स के अंदर से जाके निकालता है ना? वो क्या कहता है, कॉन्टेक्स्ट और रिसोर्स के अंदर से जाके हम स्ट्रिंग निकालते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें और यहाँ पे क्या लिखा है, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, सेट इमेज रिसोर्स. मतलब क्या, हमें यहाँ पे इमेज का जो रिसोर्स है वो हमें पास करना है. और इमेज का रिसोर्स क्या है हमारा? हमारा इमेज का रिसोर्स है करंट करंट ब्लॉग डॉट इमेज. ठीक है, तो अभी वापस बता रहा हूँ, कंफ्यूजिंग ना हो. हमने याद है आपको, हमने कल किया था क्या, करंट ब्लॉग डॉट टाइटल टू स्ट्रिंग. तो उसने क्या दिया था, उसने हमें कुछ इंटीजर्स के नंबर दिया था, राइट? क्यों? क्योंकि वो था उसका रिसोर्स. लेकिन लेकिन हमें उसका रिसोर्स नहीं चाहिए था, हमें उस रिसोर्स के अंदर से वैल्यू चाहिए थी. तो उस रिसोर्स के अंदर से वैल्यू निकालने के लिए वी यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट रिसोर्स डॉट गेट स्ट्रिंग. लेकिन ब्लॉक इमेज के अंदर क्या एट्रीब्यूट है, सेट इमेज रिसोर्स. मतलब क्या, ब्लॉक इमेज बोलता है कि भाई तू ना मुझे वैल्यू वैल्यू बना दे, तू मुझे सीधा पता कि रिसोर्स फाइल कहाँ है. तो रिसोर्स फाइल कहाँ होगी? रिसोर्स फाइल होगी हमारे करंट ब्लॉक डॉट इमेज में, राइट? जो इसका ये इंटीजर वैल्यू है. सो करंट ब्लॉक डॉट इमेज के अंदर जाएगा, वो वहां से वो इमेज का रिसोर्स निकालेगा, एंड उस रिसोर्स को पास करेगा पे हम लोग सेट इमेज रिसोर्स में. तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो ब्लॉग इमेज रहेगा वो इमेज को कर लेगा. और इसको स्पेसिफाई करने के लिए एक बार आपने लिख लिया ना कि होल्डर, आपने एक बार होल्डर डॉट ब्लॉग इमेज स्पेसिफाई कर दिया, हमने उसका व्यू होल्डर के अंदर स्ट्रक्चर बना लिया. वी आल्सो चेंज आवर मॉडल, वी आल्सो चेंज आवर डेटा सोर्स. सो सब अभी हो गया. द नेक्स्ट थिंग इज दैट ना कि जस्ट रन योर ऐप. तो अगर आप अपना एप्लीकेशन रन करेंगे, सो इट विल टेक सम टाइम. इफ यू watching this on so what are your blog build for that? I think my screen has freeze again. Okay, blog के अंदर से
Okay guys, yeah, I'm back. Sorry for the delay. थोड़ा इंटरनेट इशू था. Okay, yeah. So अभी सबको स्क्रीन दिख रही है ना? अभी स्क्रीन दिख लगा है, मॉल हिलते हुए दिख रहा है सबको? Yes, तो चैट में अगर दिख रहा है, कंटिन्यू करें. यस. ठीक है. सो अभी हम हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया. हम लोग ने हमारे इमेज व्यू के अंदर हमने इमेज डाल दिया. ठीक है. तो ऐसे तो आप लोगों को समझा नहीं कि कैसे ब्लॉग के अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं. सो कुछ हमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया. हम लोगों ने बस डेटा को चेंज किया, हमने अडेप्टर चेंज किया और होल्डर चेंज किया, हमारा रिसाइकल भी वापस से उसको अपना लिया. अभी ना थोड़ा लेट्स मूव ऑन टू द यूआई पार्ट. सो अभी क्या करना है भाई, अगर इसको हम देखेंगे तो देखो ना, इसमें कोई मालूम पड़ नहीं रहा कि कौन सा ब्लॉग है. उसके लिए क्या कहते हैं हम लोग, रिसाइकल व्यू के ऊपर ही जो है हम एक क्या बोलते हैं, डालते हैं टैग. ठीक है. हम लोग रिसाइकल व्यू के ऊपर ही जो है हम लोग एक डालते हैं. तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका कंस्ट्रेंट हटाया मैंने. ठीक है. तो मैं क्या किया, मैं एक्टिविटी विंडो एसएमएल में गया. मैंने कंस्ट्रेंट लिया, जो रिसाइकल व्यू था मैंने उसका टॉप कंस्ट्रेंट हटा दिया. ठीक है. उसमें क्या करूंगा, मैं एक टेक्स्ट व्यू को करूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा. एंड इसको जो है मैं फुल दूंगा, फिर ऊपर जा पूरा. एंड साइड में मैं इसका जो है टाइटल भी चेंज करता हूँ. मैं देता हूँ इसको क्या, लेट्स से मैंने क्या दिया था, आई थिंक रिसेंट ब्लॉग तो नहीं दिया था. चलो लेट्स से हम लोग लिखते हैं क्या, अदर आर्टिकल. ठीक है. अदर आर्टिकल्स. इस ऑल अप टू यू, जॉब को लिखना वहाँ लिखिए. तो मैंने क्या किया, अदर आर्टिकल लिखा. एंड इसका जो मैं टेक्स्ट अपीयरेंस है, तो मैं टेक्स्ट अपीयरेंस चेंज करूंगा किसमें, लार्ज में. ठीक है. सो टेक्स्ट अपीयरेंस मैंने किया लार्ज, तो स्क्रीन एनलार्ज हो गई. ठीक है. एंड देन आई नीड टू डू इज दैट कि इसको थोड़ा मैं स्पेसिंग दूंगा, क्या स्पेसिंग दूंगा. सो ऊपर से 10 एंड राइट से भी 10. ठीक है. तो क्या रहेगा, ये थोड़ा हट के रहेगा. एंड या एंड फिर मैं क्या करूंगा, अभी जो हमारा रिसाइकलर व्यू है उसका कंस्ट्रेंट क्या होगा, उसका अभी टॉप कंस्ट्रेंट जो है ना, हमारा ऊपर का पूरा नहीं रहेगा. अगर हम इस रिसाइकलर व्यू को एकदम पैरेंट का दे देंगे ना अपर, तो क्या करेगा, हमारा जो अदर आर्टिकल है ना, ये रिसाइकलर व्यू में छुप जाएगा. सो नहीं, मैं आई कैन नॉट जूम यार, ये चीज जूम नहीं होती है. ये चीज इसको मैं इतना बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन टोटली बड़ा नहीं कर सकता हूँ इसको. ज़्यादा सही. ठीक है. सॉरी फैजान, ये जूम नहीं हो सकता. आप स्क्रीन जूम कर लो ना, क्योंकि ये ऐसे ही रहेगा. आई गेस इससे बड़ा नहीं कर सकता हूँ मैं. ठीक है. सो क्या करना पड़ेगा मुझे, मेरा रिसाइकलर व्यू का जो टॉप कंस्ट्रेंट है, पहले क्या था, मेरा रिसाइकलर व्यू का टॉप कंस्ट्रेंट मेरा पैरेंट का टॉप कंटेंट था. ठीक है. लेकिन अगर मैं अभी वापस से रिसाइकलर व्यू का टॉप कंस्ट्रेंट पैरेंट में मैच कर दूंगा, तो जो हमारा अदर आर्टिकल वाला ब्लॉग है ना, वो रिसाइकलर व्यू के पीछे छुप जाएगा. अभी वो चाहिए नहीं ना, हम चाहते हैं कि रिसाइकल व्यू अदर आर्टिकल नीचे है. सो मेरा रिसाइकल व्यू का टॉप कंस्ट्रेंट रहेगा मेरा अदर आर्टिकल का बॉटम कंस्ट्रेंट. ठीक है. तो इससे क्या होगा, ये दोनों एक के नीचे एक रहेंगे. एंड और सिर्फ मैं नहीं चाहता कि जो मेरा अदर आर्टिकल है और मेरा जो ब्लॉग है, अदर आर्टिकल जो मैं टेक्स्ट व्यू में रिसाइकल आपस में चिपक के लिए. सो मैं क्या करूंगा, मैं अदर ब्लॉग रिसाइकलर व्यू का जो टॉप कंस्ट्रेंट है उसे 0 नहीं रखूंगा, मैं उसे रख दूंगा 10. ठीक है. ताकि तो स्पेसिंग मिले ना. ठीक है. सो मैंने 10 डी पे रख दिया. ठीक है. सो उसमें इतना क्या मैंने क्या किया, मैंने एक नया टेक्स्ट व्यू डाल दिया. एंड टेक्स्ट व्यू के नीचे मैंने रिसाइकलर व्यू डाल दिया. एंड देन अगर मैं वापस से नहीं रन करना है इसमें, अभी क्या होगा, अभी देखिए क्या होगा. ग्रेडर व्यू रनिंग कर रही है. 10 मिनट. एंड
ठीक है, 98% सीक्रेट हो चुका है। हाँ, सो देखिए अभी हमारा जो है अदर आर्टिकल ऊपर लिख के आ गया एंड अदर आर्टिकल के नीचे हमारे सारे ब्लॉग आ गए। लेकिन अभी आपने एक चीज नोटिस किया रहेगा कि मैं रिसाइकलर व्यू को स्क्रॉल तो कर रहा हूँ, रिसाइकलर व्यू को स्क्रॉल करने के बावजूद भी जो मेरा जो मेरा अदर आर्टिकल है, ये मेरा अदर आर्टिकल हटा नहीं है। लाइक ऐसा लग रहा है कि वो अदर आर्टिकल ऊपर का ऐसा ऐसा नया चिपका हुआ है एंड बाकी सारी चीजें आप अपने से जुड़ी। लेकिन ये थोड़ा गंदा लगता है ना, लाइक कि ऐसा अदर आर्टिकल ऊपर लिखा हुआ है, आप स्क्रॉल कर रहे हो, लाइक आप चाहोगे ना कि जो अदर आर्टिकल है जब इतनी साल में स्क्रॉल हो। सो इस यहाँ पे आता है एक हमारा नया लेआउट, हमारा उस लेआउट का नाम है। जब आप लेआउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका कंटेनर 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 में जाओगे तो एक नया कंटेनर है, उसका नाम है नेस्टेड स्क्रॉल व्यू। अभी नेस्टेड स्क्रॉल व्यू क्या है? इनसाइड नेस्टेड स्क्रॉल व्यू यू कैन हैव ये उसमें ऐसा होता है ना कि आपके पास अलग अलग काइंड ऑफ ऐसे व्यू होते हैं जो स्क्रॉलेबल होते हैं। कि जैसा कि आप हमारा यार एप्लीकेशन खोलेंगे, जो हमारा मेन एप्लीकेशन था, कहाँ गया, तो हमारा यार एप्लीकेशन था। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग भी थी एंड वर्टिकल स्क्रॉलिंग भी थी। मतलब क्या, यहाँ पे मेरे पास दो अलग टाइप ऑफ रिसाइकलर व्यू थे एंड उन दोनों रिसाइकलर व्यू का स्क्रॉलिंग अलग अलग था। तो ऐसे टाइम पे क्या आता है, हमारे टाइम में आता है नेस्टेड स्क्रॉल व्यू। तो नेस्टेड स्क्रॉल व्यू के अंदर आप जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग के स्क्रॉल व्यू डाल सकते हो। तो अभी आप बोलोगे कि जकी ये नेस्टेड स्क्रॉल व्यू कैसे डालने का, तो उसके लिए फर्स्ट थिंग क्या करो, आप जो है आपके एक्टिविटी मेन डॉट एचटीएमएल में आ जाओ, क्लिक ऑन स्प्लिट एंड इधर पे जो है लेट मी ओपन ओवर हियर, इधर पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट लेआउट आपका है ना, ठीक है, ये आपको कंस्ट्रेंट लेआउट है। अभी इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर ही हमें जो है एक नेस्टेड लेआउट डालना पड़ेगा। सो कमिंग बैक टू डिजाइन व्यू, क्या करो, आप जो एक नेस्टेड स्क्रॉल व्यू लो, इस नेस्टेड स्क्रॉल व्यू को सीधा आके ड्रॉ कर दो एंड ऑपरेशन रिक्वायर, तो ऐसा लिख के आएगा द ऑपरेशन रिक्वायर लाइब्रेरी एंड्रॉइड blah blah blah, वुड यू लाइक टू ऐड दिस नाउ, ओके। तो ये हमारी डिपेंडेंसी डाला क्योंकि नेस्टेड स्क्रॉल व्यू को शायद कोई डिपेंडेंसी चाहिए रहेगी, 4.1 मैंने सॉर्ट किया था। क्या उसका सो सिंस डिपेंडेंसी ऐड हो गई तो ये ऊपर हमारा क्रिएटर प्रोजेक्ट को वापस सिंक कर रहा है। तो जब तक ये एडिंग करता है ना, हम लोग जो है बात करते हैं हमारे सेकंड किस रिसाइकलर व्यू की। तो हमारा सेकंड रिसाइकलर व्यू क्या था, एक तो अभी हमने वर्टिकल रिसाइकलर व्यू कर लिया, तो अभी दूसरा हमें कौन सा रिसाइकलर व्यू बनाना है, हमें दूसरा रिसाइकलर व्यू बनाने का है हॉरिजॉन्टल का। सो सिंस दोनों रिसाइकलर व्यू का डेटा सोर्स मैं अभी सेम रख रहा हूँ, तो उसके लिए like, अगर आप चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि दोनों, अगर आप चाहते हो कि जो दूसरा वाला रिसाइकलर व्यू आपका उसका अलग to डेटा आए, तो आप क्या कर सकते हो, लाइक इट्स ऑल अप टू यू। आप क्या करो, एक डेटा सोर्स के अंदर जो है एक नया फंक्शन मारो, ठीक है, डेटा सोर्स के अंदर आओ और इधर के एक नया फंक्शन मारो, जो भी आपको बनाना है फंक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था लोड ब्लॉक, आप कर लो लोड पॉपुलर ब्लॉक, इट्स ऑल अप टू यू। डेटा सोर्स कैसे बनाना है दैट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मैं टू सेव आवर टाइम, मैं क्या करूंगा, मैं सीधा डायरेक्ट जंप करूंगा अडेप्टर में। सो अभी अडेप्टर को क्या चाहिए रहता है, अडेप्टर को चाहिए रहता है डेटा एंड व्यू होल्डर। सो डेटा जो हमारे पास रेडी रेडी है ना, डेटा हमारे पास रेडी है हमारे डेटा सोर्स से। अभी क्या बनाना पड़ेगा हमें उसके लिए, उस हॉरिजॉन्टल रिसाइकल व्यू के लिए, हमें उस हॉरिजॉन्टल रिसाइकल व्यू के लिए बनाना पड़ेगा उसका व्यू ग्रुप। उसका व्यू ग्रुप कैसे बनाएंगे, ऑफिस से आइए लेआउट में, ठीक है, लेआउट में आइए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू एंड देन लेआउट रिसोर्सेज फाइल।
ठीक है, इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, पॉपुलर ब्लॉग आइटम। ठीक है, पॉपुलर ब्लॉग आइटम एंड देन ओके। ठीक है, एंड वापस आइए कंस्ट्रेंट लेआउट था, इस कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करना पड़ेगा किसमें हमें, इसको पूरा का पूरा खींचिए एंड देन कट एंड ये आएगा क्या हमारा मटेरियल कार्ड होता है com.google.android.material.card.material ठीक है। तो इससे हमारे पास कार्ड व्यू आ गया एंड इसकी हाइट ऑब्वियसली क्या होगा कैप कंटेंट। एंड आपके पास जो है ना, हम विड्थ जो है ना, विड्थ हम लोग विड्थ जो है मैच पैनल नहीं करेंगे। अब मैच पैनल क्यों नहीं करेंगे, मैच पैनल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो ना, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जितने भी हमारे एक एक आइटम है इनका कुछ एक प्री डिफाइन देखो ना, सबके सब सेम है और कुछ और सबके सब जो है पूरे का पूरा पैरेंट को साइज लिए नहीं, जैसे हमारे नीचे रिसेंट आर्टिकल लिया है पूरा का पूरा साइज, ऊपर के हमारे लिए नहीं है पूरे साइज, लाइक इन्होंने कुछ डीपी लिया है। तो वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो लेआउट का विड्थ है, instead of having it has a match parent, we will do it as 150 dp। ठीक है, 150 dp से देखिए यहाँ पे ऊपर हल्का सा आ गया यहाँ पे, आप ऐसा दिखेगा नहीं भी, लेकिन यहाँ पे मुझे ऊपर देख पा रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ऊपर मेरा एक आया है ऐसा ब्लू कलर की लाइन ऊपर। ठीक है, सो ये मेरा कार्ड व्यू बन गया एंड लास्ट थिंग आई नीड टू डू इज आई नीड टू ऐड द आईडी। ठीक है, तो मैंने आईडी ऐड किया, आईडी कर दूंगा मैं इसको पॉपुलर कार्ड। ठीक है, पॉपुलर कार्ड व्यू। ओके, सो मेरा कार्ड व्यू बन गया। मैं ना वापस साइड से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि हमने ये सेम की सेम चीज हमने कल देख लिया था। ठीक है, तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, जस्ट गो एंड वॉच यस्टरडे रिकॉर्डिंग। ठीक है, एंड लीनियर लेआउट। ठीक है, वापस से मैं कार्ड व्यू के क्या करूंगा, लीनियर लेआउट मैच पेरेंट, और ये भी होगा मेरा मैच पेरेंट ताकि पूरा का पूरा साइज ले एंड देन ये डन। और इसके अंदर क्या आएगा मेरा, एक आएगा मेरा इमेज व्यू। ठीक है, इमेज व्यू का रहेगा मैच पेरेंट एंड ये मैंने क्या किया था, you know it's better to have my screen over here। हाँ, तो इसकी हाइट मैंने प्री डिफाइन किया था सेम 150 dp एंड या वापस से सेम स्केल टाइप में करूंगा क्या, सेंटर क्रॉप एंड देन आईडी दूंगा इसको मैं। ठीक है, तो मैंने आईडी दिया, आईडी दूंगा क्या पॉपुलर ब्लॉग IMG। ठीक है, पॉपुलर ब्लॉग IMG दे दिया एंड मैं जो है ना थोड़ा आपकी बात दूंगा पैडिंग। ठीक है, उसमें पैडिंग नहीं, मैं मार्जिन बॉटम दूंगा, क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि जो हमारा इमेज है और हमारा कार्ड दो आप उसमें चिपक के रहे, थोड़ा वो रहना चाहिए ना, क्या बोलते हैं, मार्जिन तो रहना चाहिए। क्या करूंगा मैं डालूंगा लेआउट। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा, जैसे मैं लिखा लेआउट, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आ गया लेआउट मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मार्जिन बॉटम। ठीक है, मार्जिन बॉटम में क्या करूंगा, मैं मार्जिन बॉटम करूंगा 20 dp। ठीक है, एंड देन मेरा इमेज व्यू खत्म हो गया एंड देन नेक्स्ट वी हैव इज अवर टेक्स्ट व्यू। ठीक है, टेक्स्ट व्यू का बिट जो है मैं चाहता हूँ मैच पैरेंट करे, हाइट जो है रैप कंटेंट एंड इसको बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, एंड वापस इसका क्या करूंगा मैं, टेक्स्ट अपीयरेंस, इसका टेक्स्ट अपीयरेंस दूंगा मैं लार्ज, जो लार्ज कौन सा था, सो ये था लार्ज। ठीक है, तो मैं क्या किया, अब आपको शायद दिखा नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने टेक्स्ट अपीयरेंस लिया एंड टेक्स्ट अपीयरेंस में लिखा क्या LRGE। ठीक है, जैसे मैंने लार्ज लिखा, सो जो पहला वाला जो है ना, अगर मेरे से होवर दिखाएगा नहीं मुझे, तो मैं क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैं ट्राई भी क्या बड़ा। तो देखिए यहाँ पे जो है इसने पहला वाला जो था सेलेक्ट किया था मैंने, वो था टेक्स्ट अपीयरेंस डॉट ऐप कॉम्बैट डॉट लार्ज। ठीक है, मैं लार्ज सेलेक्ट करूंगा एंड देन जब और कुछ बाकी है इसमें, एंड हाँ टेक्स्ट साइज मुझे थोड़ा बड़ा करना है, टेक्स्ट साइज मुझे चाहिए कितना 25 SP। ठीक है, एंड जस्ट फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ ताकि मैं दिखे कि क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा एंड लेट्स से वो एड टाइटल 1 एंड देन या, तो अभी शायद दिखेगा नहीं आप लोग को, लेकिन इधर पे जो है हमारे लीनियर लेआउट के अंदर तो हमारा पूरा कार्ड जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, एंड देन कुछ एरर लीनियर लेआउट क्या एरर है, हाँ एरर ये है कि हमने, अरे यार, लीनियर लेआउट का हमने नहीं ओरिएंटेशन करना कैसा, सो ओरिएंटेशन का वर्टिकल। ठीक है, सो अभी देखिए, तो हम जो एरर ये था कि मैंने लीनियर लेआउट को मैंने ओरिएंटेशन दिया नहीं था। अभी लीनियर लेआउट जो है आइदर यू कैन ओरिएंटेट योर लीनियर लेआउट हैज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हमें वर्टिकल चाहिए था।
तो मैं वर्टिकल करने से देखिए यहाँ पे हमारा जो रहेगा हमारा हर कार्ड व्यू ऐसा दिखेगा। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये कि जो हमारा कार्ड व्यू है, ये वाला जो हमारा कार्ड व्यू देखो ना कैसा पूरा का पूरा स्क्रीन से चिपका हुआ है। अभी ऐसा चिपका हुआ तो अच्छा लगता नहीं है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें जो कार्ड व्यू है ना, इस कार्ड व्यू को हम क्या देंगे, मार्जिन देंगे। ठीक है, इसको हम लोग ना पूरा का पूरा मार्जिन देंगे कितना, 8 dp। ठीक है, ताकि दो कार्ड अगर अगर हम इसे मार्जिन ना देना 8 dp, तो क्या होगा, जो दो दो हमारे रहेंगे ना कार्ड व्यू, ये दोनों के दोनों कार्ड व्यू आपस में एकदम चिपके हुए रहेंगे। अभी वो थोड़ा गंदा लगेगा ना कि दोनों के दोनों आपस चिपके हुए, तो उसके लिए हमने क्या दिया, लेआउट मार्जिन 8 dp, ताकि दो कार्ड व्यू के बीच में 8 dp कितना हो, 16 dp, तो 16 dp का चेंजेस हो। ओके, मतलब डिस्टेंस हो। एंड ये हो गया हमारा। सो अभी हमारा डेटा रेडी हो गया, हमारा व्यू होल्डर भी रेडी हो गया। अगली चीज क्या है, अगली चीज है वी नीड टू अगेन गो एंड क्रिएट अ न्यू अडेप्टर। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करते हैं अडेप्टर, क्लिक ऑन अडेप्टर, राइट क्लिक, न्यू, कॉटलिन क्लास स्लैश फाइल, एंटर, एंड इसको नाम दो, इसको मैं नाम देता हूँ क्या, पॉपुलर पॉपुलर अडेप्टर। ठीक है, पॉपुलर ब्लॉग अडेप्टर। और नेम कन्वेंशन ऐसा करना चाहिए ना कि जो दूसरा यूजर है वो समझ पाए कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो मैंने क्लास बना लिया। अभी वापस से क्या करना था मुझे, मुझे इस क्लास के अंदर दो, अगर चल मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको एंड इसको साइड बाय साइड करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको दो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर अगर आपको दो फाइल को आजू बाजू में ओपन करना है, लाइक आपको एक साथ दो फाइल ओपन करना है, तो क्या करो, जो भी फाइल है ना, जो भी फाइल आपको ओपन करना है लेफ्ट साइड में, उसको क्लिक करो, हाँ उसे ड्रैग करो, एंड उसको ड्रॉप करके बाजू में लाओ। तो जैसे आप बाजू में लेके आएंगे ना, इसको देखिए कैसा स्क्रीन आली हो गई। तो जस्ट उसे ड्रॉप कर दो, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि हमारी दो फाइल जो है एक साथ दो फाइल खुली होगी हमारी। ठीक है, तो वापस आई, लाइक छोटा सा था, सोचा बता दो। ठीक है, एंड वापस एक अभी हमारा ब्लॉग एडेप्टर के अंदर हमें क्या लगेगा, हमारा ब्लॉग एडेप्टर के अंदर हमें दो पैरामीटर लगेंगे, कौन से, एक रहेगा कॉन्टेक्स्ट, एक रहेगा ब्लॉग। ठीक है, तो वही कर लेते हैं हम, वापस से हम लोग आए यहाँ पे, लिखा हमने क्या, प्राइवेट वाल, इसको मैं कर देता हूँ, ये मेन चीज नहीं था। ठीक है, सो प्राइवेट वाल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट, एंड देन दूसरा पैरामीटर क्या रहेगा हमारा, प्राइवेट वाल ब्लॉक्स। और ये इसका टाइप क्या रहेगा, इसका टाइप रहेगा लिस्ट ऑफ आवर ब्लॉग मॉडल। ठीक है, लिस्ट ऑफ आवर ब्लॉग मॉडल। इसका क्या करता हूँ मैंने, ये थोड़ा एनोइंग मॉडल है, इसको लाके यहाँ देता हूँ, इसको उठाया एंड पेस्ट किया, तो इधर पे आ गया मैं। ठीक है, सो यहाँ पे ब्लॉग को बोल रहा है कि नहीं इम्पोर्ट किया, तो अल्ट प्लस एंटर दबाया और मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, सो मेरा ब्लॉग इंपोर्ट हो गया। अभी अगली चीज क्या थी, अगली चीज ये थी कि हमें रिसाइकलर व्यू को करना था इनहेरिट। कैसे करते हैं इनहेरिट, यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड लिखिए क्या, रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर। ठीक है, हमने क्या किया, हमने रिसाइकलर व्यू के जो एडेप्टर क्लास थी हमने उसको इनहेरिट किया। अभी वापस यही क्या मांगेगा, यहाँ पे ये मांगेगा हमारा व्यू होल्डर क्लास। तो व्यू होल्डर क्लास बनाना पड़ेगा अभी हमको। व्यू होल्डर क्लास किससे बनाते हैं बताइए, कैसे बनाते थे हम लोग हमारी मेन एडेप्टर क्लास के अंदर हम नई क्लास बनाते थे, क्लास लेट्स से पॉपुलर ब्लॉग व्यू होल्डर। ठीक है, हमने इसको देके पास करेगा आइटम व्यू रहेगा टाइप ऑफ व्यू, हाँ, एंड देन हम लोग इसे रीहाइलाइट करते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, एंड इसको हम पास करते हैं क्या, आइटम व्यू। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने कल बताया था, एंड या ठीक है, तो ये डन हो गया। एंड इसको इंपोर्ट करता हूँ एंड इंपोर्ट। और अभी क्या करने का पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसको टाइप देना पड़ेगा क्या, पॉपुलर ब्लॉग डॉट पॉपुलर व्यू डॉट एडेप्टर। ठीक है, सो मेरे को इसका टाइप देना पड़ा अपना ये। ठीक है, एंड देन शायद इधर पे एरर है, या ठीक है, एंड और क्या बाकी था, और अभी ये बाकी था कि हमें इसके जो है कुछ चीजें को हमने करना था इनहेरिट। ठीक है, क्योंकि सिंस हमारा एडेप्टर क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो कुछ मैटर में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हम लोग ने एरर, हम लोग सेम जो हमने कल किया था कि हमने एरर पे हमने होवर किया, हमें एरर आया तो हमने क्लिक किया इंप्लीमेंट मेंबर्स उसमें, कंट्रोल ए एंड देन ओके। तो ये क्या कर देगा, सारे सारे मेंबर जो है वो हमें कर देगा इंप्लीमेंट। तो सारा कैसे करते थे हम लोग चालू करते थे फ्रॉम आवर गेट आइटम डॉट कॉम। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ,
इसको मैं पॉपुलर ब्लॉग व्यू होल्डर को मैं कट करके नीचे आता हूँ ताकि तो इजी रहे, ठीक है। एंड या तो पहले क्या करना पड़ता है हमें, पहले ये करना पड़ता है कि हमें गेट आइटम कौन डालना पड़ता है। गेट आइटम कौन क्या होता है, गेट आइटम कौन होता है हमारा क्या, रिटर्न ब्लॉक्स डॉट साइज, ठीक है। तो गेट आइटम कौन क्या करता था, हमें आइटम का कौन देता था। सेकंड थिंग वी हैव इज ऑन के व्यू होल्डर, ये क्या करेगा, हमें हमारा व्यू होल्डर बना के देगा, ठीक है। तो वाल व्यू का टाइप भी रहेगा व्यू, एंड ये क्या करेगा, इसमें आएगा हमारा लेआउट इन्फ्लेट होगा, ठीक है। तो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कहाँ से, कॉन्टेक्ट से करो, ठीक है। डॉट कॉन्टेक्ट हमारा ये हमने जो हमने पैरामीटर लिया कॉन्टेक्ट, वहां से हमने कॉन्टेक्ट लिया। एंड देन क्या करना है, डॉट इन्फ्लेट, कौन सा लेआउट इन्फ्लेट करना है हमें, हमें इन्फ्लेट करना है आर डॉट लेआउट डॉट पॉपुलर, आर को हमें लाना पड़ेगा, आर को लेकर आया मैंने, ठीक है। तो क्या था मेरा आर डॉट लेआउट डॉट पॉपुलर ब्लॉक है, ठीक है। मुझे मेरा पॉपुलर ब्लॉक आइटम था, मैंने इसको किया लेकर आया, एंड देन पेरेंट एंड देन कॉमा फॉर, ठीक है। लाइक बेसिक चीजें तो हमने कल कवर अप किया था। एंड देन मुझे रिटर्न क्या करना है, मेरा व्यू, ठीक है। व्यू नहीं करना है, रिटर्न करना है मेरा पॉपुलर ब्लॉक व्यू होल्डर टाइप। देखो ना ऊपर क्या हमें क्या कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, यहाँ पे ऊपर वैल्यू रिटर्न होगी हमारी पॉपुलर ब्लॉक व्यू होल्डर की। तो वो कहना पड़ेगा रिटर्न पॉपुलर ब्लॉक व्यू होल्डर, एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा व्यू। सो इस तरीके से हमने हमारा क्या किया, हमने हमारा सेम ऑन किए व्यू होल्डर बना लिया, एंड हमने हमारा गेट आइटम कॉल बना लिया। लास्ट चीज क्या है, लास्ट चीज ये है कि हमें हमारा व्यू होल्डर से जाके हमारा जो इमेज था, हमारी जो कार्ड इमेज थी उसका, और जो हमारा टाइटल टेक्स्ट व्यू था उसका हमें बनाने का, इंसर्ट बनाने का। तो पहले लेट मी क्रॉस चेक कि मैंने क्या दोनों का आईडी दिया हूँ। सो मैंने इसको आईडी नहीं दिया हूँ, सो लेट मी गिव आईडी टू माय टेक्स्ट व्यू, ठीक है। आईडी कह दूंगा मैं इसको, आईडी दिया मैंने क्या, आईडी इनटू पॉपुलर। और हाँ याद रखना गाइस, आईडी शुड बी व्हाट वी से यूनिक, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ये आईडी यहाँ पे दिया है, सेम आईडी आपने कोई और लेआउट में दिया, वो एरर होगा, ठीक है। तो मैं दूंगा क्या, इसको मैं दूंगा पॉपुलर ब्लॉग टाइटल, ठीक है। पॉपुलर ब्लॉग टाइटल दिया, एंड देन कमिंग बैक टू माय अडेप्टर। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉपुलर ब्लॉग व्यू होल्डर के अंदर उन दोनों टेक्स्ट जो भी व्यू मेरे काम के है उनको मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा उनका इंस्टेंस। तो कैसे बनाते हैं इंस्टेंस, वाल, ठीक है। वाल क्या बनूंगा मैं, पॉपुलर टाइटल, नहीं बताओ क्या करता हूँ, ब्लॉग टाइटल, ठीक है। अगर आप बोलेगे देखिए तो यहाँ पे सेम लिख कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं सेम इसलिए लिखा क्योंकि ये अलग अलग क्लास है, ये क्लास एंड ये क्लास अलग है। अगर मैंने वापस से अगर मैं दोनों का वेरिएबल सेम भी लिखा है तो मुझे ज्यादा एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो टाइटल इक्वल टू क्या रहेगा मेरा टेक्स्ट व्यू, ठीक है। टेक्स्ट व्यू इक्वल टू क्या, आइटम व्यू डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट ब्लॉग, कहाँ गया मेरा ब्लॉग टाइटल डॉट पॉपुलर ब्लॉग टाइटल, ठीक है। आर डॉट आईडी डॉट पॉपुलर ब्लॉग टाइटल आ गया। एंड देन मेरा इमेज व्यू, ठीक है। मेरा इमेज व्यू क्या रहेगा, टाइप रहेगा ऑफ इमेज व्यू इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट पॉपुलर ब्लॉग इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने मेरे दोनों जो व्यूज थे उनका मैंने इंस्टेंस बना लिया। अब ये बात आती है किसकी, बात आती है हमारे ऑन बाइंड व्यू होल्डर की, ठीक है। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या करता है, ये हमारे डेटा को हमारे व्यू को लेके दोनों को आपस में बाइंड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर के सबसे पहले मैं, और ऑब्वियसली जस्ट स्मॉल रिकैप, यहाँ पे होल्डर जो है हमारा, जो हमारा व्यू है ये होल्डर वो है। एंड हमारा पोजीशन क्या है कि जो भी डेटा स्क्रीन पे रेंडर हो रहा है ना, जो भी डेटा स्क्रीन में रेंडर होने वाला है उसकी पोजीशन बताता है ये, ठीक है। सो और उसकी पोजीशन मतलब क्या कि कौन सा वाला डेटा रेंडर होने वाला है उसका वैल्यू जो है पोजीशन में रहेगा, ठीक है। अब इसका काम क्या रहेगा, इसका काम ये रहेगा कि हम लोग वही पोजीशन का डेटा सोर्स से निकाल के हम लोग हमारे व्यू होल्डर का ना बाइंड करेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले मुझे मेरा करंट ब्लॉक का डेटा है वो मुझे पहले ग्रैब करना पड़ेगा। वो कैसे ग्रैब करूंगा मैं एक बना लूंगा वेरिएबल, ठीक है। मैं वेरिएबल बना लिया करंट ब्लॉक, यहाँ बना लिया वेरिएबल करंट ब्लॉक इक्वल टू क्या रहेगा ये ब्लॉक्स
ब्लॉक्स डॉट पोजीशन, ठीक है, क्योंकि जो मेरा ब्लॉग है वो एक एरे है, ठीक है, इट्स नथिंग बट लिस्ट ऑफ डेटा। सो लिस्ट का वैल्यू कैसे हम लोग करते हैं एक्सेस बाय इट्स इंडेक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अगला चीज क्या रहेगा मेरा, होल्डर डॉट, वही सेम था, ठीक है, होल्डर डॉट ब्लॉक टाइटल, ठीक है, होल्डर डॉट ब्लॉक टाइटल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या, कॉन्टेक्स्ट डॉट रिसोर्सेस डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है, गेट स्ट्रिंग। अभी आईडी मांगेगा, मेरी आईडी क्या देगी, मेरी आईडी देगी मेरा करंट ब्लॉग का टाइटल। ओके, तो इस तरीके से मेरा टेक्स्ट व्यू आ गया। एंड अगली चीज क्या है, अगली चीज है मेरा होल्डर डॉट इमेज व्यू, ठीक है, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स, ठीक है। एंड क्या यहाँ पे क्या पास करूंगा मैं, करंट ब्लॉग डॉट इमेज, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझा कि क्या हुआ ये सब, कैसा बाउंस मारा, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट किया, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें मैंने कल ही पढ़ाई थी मैंने। सो समझा ना आप लोग को, समझा ना, हाँ चलो बढ़िया। तो अभी देखो हमारा डेटा आ गया, ठीक है, हम लोगों ने डेटा बना लिया, हम लोगों ने व्यू होल्डर बना लिया, हम लोगों ने एडेप्टर बना लिया। बाकी क्या है, रिसाइकलर व्यू, ठीक है। सो रिसाइकलर व्यू जो है अभी तक आया नहीं हमारा, अगर हम जाएंगे हमारे एक्टिविटी मेन एक्सएमएल के अंदर, तो यहाँ पे अभी हमारे पास हमारा रिसाइकलर वो डेटा नहीं आया है, रिसाइकलर व्यू हमारा वो आया नहीं। चलो हमारा नेक्स्ट स्कोर व्यू भी आ गया, तो ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, लाइक बिफोर एडिंग अवर रिसाइकलर व्यू वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट स्क्रोल व्यू। तो नेक्स्ट स्क्रॉल व्यू कहता है, ये ऐसा स्क्रॉल व्यू है जिसके अंदर यू कैन ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रॉल व्यू, यू कैन ऐड हॉरिजॉन्टल एंड यू कैन ऐड वर्टिकल। वरना क्या करना पड़ेगा आपको, आपको जो यहाँ दिखा है स्क्रॉल व्यू एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू, आपको ये ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये तो अजीब है, तो हम वो नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, क्यों हम लोग क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे नेक्स्ट स्क्रॉल व्यू। अभी नेक्स्ट स्क्रॉल व्यू जो है ये अभी हमारा क्या बनेगा, हमारा ये मेन कंटेनर बनेगा। तो ऐसा रहेगा कि हमारा कंस्टेंट लेआउट के अंदर हमारा नेक्स्ट स्क्रॉल व्यू, एंड हमारे नेस्टेड स्क्रॉल व्यू के अंदर हमारा जो बाकी का सारा डेटा रहेगा वो आएगा। एंड अब आप बोलोगे जकिया तू सारा डेटा को नेस्टेड स्क्रॉल व्यू के अंदर क्यों डाल रहा है, द रीजन इज बिकॉज हम नहीं चाहते कि जो अदर आर्टिकल एंड जो पॉपुलर आर्टिकल, ये जो टेक्स्ट व्यू था, हम नहीं चाहते कि ये ऐसा यूजर के स्क्रीन में चिपके रहे, अजीब लगेगा ना। तो वो भी साथ में स्लाइड करे, उसके लिए हम इन दोनों को डालेंगे नेस्टेड स्क्रॉल व्यू के अंदर, ठीक है। तो पहले काम क्या रहेगा, पहला काम ये रहेगा कि हमारे नेस्टेड स्क्रॉल व्यू को पूरा साइज दो। वो कैसे देते हैं, इसका कंसर्न उठाइए एंड इसका 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 कंसर्न उठा के पूरा स्क्रीन में अटैच कीजिए, ठीक है, ठीक है। टॉप व्यू बॉटम, टॉप कंसर्न बॉटम कंसर्न सब जो है आना चाहिए पूरा हमारा इमेज का हिस्सा है, लाइक हमारा पूरा का पूरा स्क्रीन, ठीक है। सो ये मेरा स्क्रीन आ गया पूरा। एंड देन मैं चाहता हूँ कि जो इसकी हाइट एंड विड्थ है ये 9860 रहे, ये रहे 0 dp एंड 0 dp। अभी 0 dp क्यों, ताकि पूरा का पूरा स्क्रीन खींचे। ओके, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर आगे रहेगा। एंड नेक्स्ट थिंग क्या करना पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट स्क्रॉल व्यू के अंदर भी एक लेआउट डालना पड़ेगा। अभी स्क्रॉल व्यू जो आप बोलेगे यार कि तो फिर नेक्स्ट स्क्रॉल व्यू के अंदर लेआउट डालने का मतलब भी क्या हुआ, अब वो इसलिए ना क्योंकि अभी जो बोला गया है उन लोगों ने वो करना पड़ेगा ना, कि अगर आपको कोई भी चीज अगर डालना है ना, अगर आप नेक्स्ट स्क्रॉल व्यू क्या है, नेक्स्ट स्क्रॉल व्यू इज नथिंग बट जस्ट अ लेआउट जहां पे आप अलग अलग स्क्रॉल व्यू डाल सकते हो। लेकिन जो भी स्क्रॉल व्यू लेकर अब ऐसे समझिए कि आपको ये नेक्स्ट स्क्रॉल व्यू है हमारा, ये बोल रहा है कि ठीक है भाई तू, मैं जो हूँ मैं सारे स्क्रॉल व्यू दूंगा, देखो जो स्क्रॉल व्यू डालना स्क्रॉल व्यू डाल, लेकिन वो डेटा कैसा आएगा ना, वो डेटा कैसा रेंडर होगा, ये काम मैं नहीं संभालूंगा। ये काम तेरे को पूछना पड़ेगा किससे, तेरे को पूछना पड़ेगा बाकी के लेआउट से। और बाकी के लेआउट क्या, हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है, लीनियर लेआउट है एंड अदर वो सा लेआउट है। लेकिन हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले लीनियर लेआउट। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा लेआउट है, जो हमारे व्यूज है, वो सब एक के नीचे एक के नीचे एक आए। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्प्लिट के अंदर एंड यहाँ पे जो लास्ट पे देखे ना ये आया हमारा, हाँ तो ये देखे ना बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट स्क्रॉल व्यू के अंदर लीनियर लेआउट है, देखा आपने। सो ये लीनियर लेआउट क्यों है, ये लीनियर लेआउट इसके अंदर इसलिए है ताकि जो भी डेटा इस नेक्स्ट स्क्रॉल व्यू के अंदर आएगा ना, वो एक के नीचे एक देगा। अगर आप चाहो तो आप इसको चेंज करके यू कैन आइदर गो फॉर ग्रिड लेआउट। याद है जब हम लोग रिसाइकलर व्यू के अंदर हम लोग जब लेआउट मैनेजर कर रहे थे तो कितना अलग अलग आया था, 3 आते हैं, एक था लीनियर लेआउट, एक था ग्रिड लेआउट एंड एक था स्टैक ग्रिड लेआउट, है ना। सो यू कैन यूज बोथ थ्री ऑफ योर हियर आल्सो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लीनियर लेआउट करूंगा एंड यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे लीनियर लेआउट
ऑन द स्पॉट क्लोज हो गया। हाँ देखो ना यहाँ पे लीनियर लेआउट जो है चालू होने से पहले खत्म हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो है ना ये फॉरवर्ड स्लैश इसे कट करो एंड यहाँ पे लिखो एंगुलर ब्रैकेट एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। तो इससे क्या होगा, लीनियर लेआउट का जो है हमारा व्यू खुल जाएगा। अभी एक बार ये खुल गया ना, एक बार ये खुल गया तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें कि जितना भी हमारा डेटा है ना, जितना भी हमारा ये ब्लॉग रिसाइकलर व्यू है, हमारा टेक्स्ट व्यू है, इस दोनों के दोनों को हमें डालना पड़ेगा किसके अंदर, हमारे लीनियर लेआउट के अंदर। और वो कैसे डालते हैं, आगे वो दो ऑप्शन है। आइदर यू कैन गो एंड यूज दिस, क्या बोलते हैं हमारा नॉर्मली हम करते हैं ना कंस्ट्रेंट लेआउट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। वरना मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उठाऊंगा ऐसा, जब मेरे को देखो ना मैंने क्या किया एक्चुअली डिजाइनिंग में भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ सही किया मैंने। तो क्या करो, कंस्ट्रेंट इसको उठाओ और इसको इसके अंडर रखो एंड इसको उठाओ एंड इसको इसके अंडर रखो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा लीनियर लेआउट जो है वो आ गया है। एंड देन द सेकंड थिंग आई नीड टू डू इज दैट कि मुझे इसको पूरा का पूरा हाइड देना पड़ेगा। ठीक है, सो विड्थ एंड हाइट जो है फुल स्क्रीन है एंड टेक्स्ट व्यू जो है मेरा ये है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सही है। एंड अगर मैं स्प्लिट में जाऊंगा सो या हाइट जो मैं चाहता हूँ वो मैच पेरेंट एंड विड्थ जो मैं चाहता हूँ मैच पेरेंट। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, तो मैंने मैच पेरेंट इसलिए कहा ताकि जो हमारा रिसाइकलर व्यू है ये पूरी पूरी जगह खेल जितनी इसको जगह दी गई है ना, जितनी पैसा को जगह दी गई है बची हुई, ये इतनी जगह पूरी खेचे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, तो अभी अगर मैं इसको रन करूंगा अपने ऐप ऑफिस से, अगर मैं एप्लीकेशन ऑफिस रन करूंगा तो अभी जो है देखो अभी मैं वापस से फटाफट जब तरीके से होता है दिखा देंगे दोनों में वो क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा बिल्कुल ना। ठीक है, तो अभी कैसा ना, तो अभी हमारा ब्लॉग व्यू था, हमारा रिसाइकलर व्यू स्क्रॉल हो रहा था, लेकिन हमारा ये ऊपर अदर आर्टिकल था ये ओपन चिपका हुआ था। तो अभी जब एक बार ग्रेडेड व्यू रन होगा ना, सो क्या होगा, हमारा अदर आर्टिकल भी जो है ये भी साथ में स्क्रॉल होगा। ठीक है, इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब जस्ट फॉरवर्ड 10 to 20 सेकंड। ओके, तब तक ऑडियंस आप बताओ, आप लोगों को समझा ना कि हमने नेस्टेड स्क्रॉल व्यू क्यों यूज किया। नेस्टेड स्क्रॉल व्यू क्या समझा ना आप लोग को। ठीक है, तो देखो अभी हमारा आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस दिखा नहीं होगा, लेकिन जब मैं स्क्रॉल करूंगा ना तो देखिए जब मैं स्क्रॉल किया है इसको, सो मेरा अदर आर्टिकल जो है पहले पहले से चिपका हुआ नहीं है, मेरा अदर आर्टिकल भी जो है साथ में स्क्रॉल हो रहा है, देखा आपने। सो ये है यूज ऑफ मिक्सर स्क्रॉल व्यू। ठीक है, तो ना कितना अच्छा लग रहा है, मतलब पहले कैसा था कि अदर आर्टिकल को चिपका हुआ था एंड ये ऐसे स्क्रॉल हो रहा था। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं कि हमारे नेचुरल स्क्रॉल व्यू। अभी अगला क्या करना है हमें, अगला हमें ये करना है कि हमें जो हमारा लीनियर जो हमारा दूसरा डिसाइड, हमें अभी दो चीज ऐड करना है। हमें पहली चीज ये ऐड करना है कि हमें एक ऊपर लेटेस्ट ब्लॉक अगर एक टेक्स्ट व्यू डालने का है एंड उस लेटेस्ट ब्लॉक टेक्स्ट व्यू के अंदर जो है हमें वो डालना है क्या, हमारा लीनियर हमारा दूसरा रिसाइकलर व्यू। तो क्या करना पड़ेगा, या फिर से अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट्स गो विद हार्ड कोडिंग स्टफ। ओके, बहुत हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मैं क्या आऊंगा यहाँ, मैं लिखूंगा ऑफिस टेक्स्ट व्यू। ठीक है, इसका हाइड करूंगा मैच पेरेंट एंड हाइड करूंगा रैप कंटेंट। ठीक है, एंड देन इसको मैं इसको टैग्स देता हूँ, क्या इसको मैं टैग्स देता हूँ लेट्स से लेटेस्ट आर्टिकल। ठीक है, लेटेस्ट आर्टिकल एंड देन टेक्स्ट अपीयरेंस क्या दूंगा मैं उसको, टेक्स्ट अपीयरेंस दूंगा मैं अपना टेक्स्ट अपीयरेंस डॉट एट कॉम्पैक्ट डॉट लार्ज एंड देन ऑफिस इसको साइज दूंगा मैं कितना 25 SP एंड लाइक ये तो सारा वही जो बेसिक सब जो हमेशा हम करते हैं वो करूंगा। एंड देन मैं इसको देता हूँ क्या बोलते हैं मार्जिन स्टार्ट एंड इसका जो है मार्जिन स्टार्ट दूंगा कितना 10 dp। ठीक है, dp एंड मार्जिन टॉप दूंगा कितना 10 dp। ठीक है, 10 dp। वैसे क्या रहेगा, देखो ना ये कैसा साइड में मस्त तरीके से आ गया एंड मैं इसको बंद कर दूंगा। एंड अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा रिसाइकलर व्यू। तो रिसाइकलर व्यू कैसे आता है, रिसाइकलर व्यू का जैसे क्लिक करोगे ना आरई में, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका एंड्रॉइड एक्स डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट वीची डॉट रिसाइकलर व्यू। तो ये है हमारा रिसाइकलर व्यू। ठीक है, इसको मैं करूंगा सेलेक्ट। ठीक है, इसको जिसे मैं सेलेक्ट किया ये हाइट और विड्थ लेके आ गया। सो अभी मेरी विड्थ जो रहेगी मैं पूरी पूरी मैच पैरेंट करेगी। ठीक है, लेकिन अब की बार जो मेरा हाइट है ना, हाइट जो मेरा अब की बार मैं ये रैप करने करूंगा। अब रैप कंटेंट क्यों,
रैप कंटेंट इसलिए कि अगर मैं इसको करता ना मैच पेरेंट, अगर मैं इसको करता ना मैच पेरेंट, तो ये देखिए ये पूरी की पूरी स्क्रीन खींच लिया उसने, लाइक ऊपर से लेके नीचे तक पूरी की पूरी स्क्रीन खींच लिया। एंड जो मेरे जो बाकी के दो मेरे लेआउट थे, जो मेरे नीचे के दो व्यूज थे, ये दोनों के दोनों व्यू मेरे गायब हो गए। तो ये इसलिए ताकि दोनों के नीचे के दोनों व्यू गायब ना हो, इसलिए मैंने क्या करूंगा, रैप कंटेंट। ओके, रैप कंटेंट किया मैंने, एंड देन वही वही सेम खता जो बाकी की जो बची है, कि मेरा मार्जिन रहेगा कितना, मार्जिन टॉप रहेगा 10 dp, एंड लाइक जो मैं नीचे किया हूँ, और हाँ बस, let me just recheck, या बस ठीक है। एंड देन सो अभी आप यहाँ पे देखोगे, अभी आपने यहाँ पे नोटिस किया के बाद कि सॉरी फॉर दैट, हाँ एक चीज देना है, मेन चीज देना बोल के हम लोग क्या, आईडी दूंगा क्या मैं इसको, पॉपुलर रिसाइकलर व्यू, ठीक है, पॉपुलर रिसाइकलर व्यू, पॉपुलर रिसाइकलर व्यू, ठीक। तो अभी आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि मैंने नीचे जो मैं नीचे वाला रिसाइकलर व्यू था, मैंने यहाँ पे इसको लेआउट मैनेजर और उसका स्क्रॉल बार तो मैंने डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने किया नहीं हो। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप जो सेकंड तरीका था हमारे लेआउट, हमारे रिसाइकलर व्यू को लेआउट देने का, वो ये था कि आप जो मेन एक्टिविटी डॉट केटी है ना, इसके थ्रू अभी हम लोग देंगे उसको लेआउट मैनेजर, ठीक है। उसे क्या करना पड़ेगा, जस्ट कम बैक टू योर ब्लॉग मेन एक्टिविटी डॉट केटी। पहले बात क्या रहेगी, पहला पहला काम ये रहेगा कि हमें हमारा रिसाइकलर व्यू नहीं बनाना पड़ेगा, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अडेप्टर का लेट इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ऑफिस से सेम खता प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट लेट इनिट वार पॉपुलर ब्लॉग अडेप्टर, ठीक है, पॉपुलर ब्लॉग अडेप्टर मेरा क्या रहेगा ये पॉपुलर ब्लॉग अडेप्टर, ठीक है। तो मेरा पॉपुलर ब्लॉग अडेप्टर आ गया, हाँ मेरा पॉपुलर ब्लॉग अडेप्टर का मैंने लेट इनिशियलाइजेशन कर दिया। सेकंड थिंग ये था कि सिंस दोनों का मैं डेटा सेट सेम कर रहा हूँ, अगर आप अलग डेटा सेट लोगे तो आपको वैसे मानना पड़ेगा, आपको नीचे लिखना पड़ेगा वाल डेटा सेट टू इक्वल टू डेटा सोर्स, फिर उसका क्लास जो ब्रैकेट डॉट एंड देन लोड ब्लॉक है जो भी अपना फंक्शन है, ठीक है। सिंस हम लोग सेम ही डेटा यूज कर रहे हैं तो हमें विल स्किप दिस पार्ट, एंड देन रिसाइकलर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो वाल पॉपुलर रिसाइकलर व्यू क्या रहेगा हमारा, बाइंडिंग डॉट पॉपुलर रिसाइकलर व्यू, ठीक है। देखा कैसा ऑटोमेटिकली आ गया पॉपुलर डॉट रिसाइकलर व्यू। अभी सेकंड थिंग क्या रहेगा, सेकंड थिंग रहेगा इनिशियलाइज आवर अडेप्टर। कैसे करेगा इनिशियलाइज, पॉपुलर ब्लॉक अडेप्टर इक्वल टू पॉपुलर ब्लॉक अडेप्टर, फिर मैं का पास करूंगा दिस का वो मेरा कॉन्टेक्स्ट हुआ, एंड देन डेटा सेट, ठीक है। मैं वापस से रिपीट करूंगा, अगर आप ऊपर अगर अलग डेटा सेट बनाओगे तो यहाँ पे आपको वो डेटा सेट का वेरिएबल पास करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन अगली चीज ये बची है हमारे पास कि मेरे को जो है रिसाइकलर व्यू का अडेप्टर देना पड़ेगा वापस से सेम। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पॉपुलर रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर इक्वल टू मेरा क्या रहेगा, पॉपुलर ब्लॉक अडेप्टर, एंड देन वही सेम खत्म वापस से पॉपुलर रिसाइकलर व्यू डॉट सेट हैश फिक्स साइज एंड देन ट्रू, ठीक है। क्यों हमें सेट हैश फिक्स साइज क्या इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास कुछ ये डेटा सेट है ना, अगर डेटा सेट आपका बड़ा हो, एक कॉलिंग वॉलिंग हो रहा है, सो यू नीड टू नॉट सेट इट हैश ट्रू, ठीक है। अभी अगली चीज दिखा रहा था वो था कि इसका लेआउट बनाना। अभी लीनियर लेआउट कैसे बनाते हैं ना, लीनियर लेआउट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऊपर जो है बाइंडिंग के बाद में, नहीं यहाँ पे ऊपर में मैं बनाता हूँ क्या, क्रिएटिंग लेआउट, ठीक है, क्रिएटिंग लेआउट। क्या करना पड़ेगा आपको जो है ना, पहले एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल लीनियर लेआउट, ठीक है, ये जो है लीनियर लेआउट करके बनाना पड़ेगा। एंड देन इसको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप देना पड़ेगा ऑफ लीनियर लेआउट मैनेजर, ठीक है, लीनियर लेआउट मैनेजर। एंड देन क्या पास करना पड़ेगा आपको, एक्टिविटी, ठीक है, पास किया मैंने एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी, एंड देन कॉमा, एंड देन आएगा मेरा क्या, लीनियर, वे सब क्या है मैं आपको बताता हूँ पहले, जस्ट गो विथ मी, डॉट हॉरिजॉन्टल कॉमा फॉल्स,
ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, बोल रहा है एक्टिविटी नॉट डिफाइंड, एक्टिविटी नॉट डिफाइंड भाई। ठीक है, शायद मैंने सब इम्पोर्ट नहीं किया। ये ACTIVITY से कुछ पढ़ेंगे। शायद अलग ही आया होगा, वो बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार ये हो गया ना, मुझे नीचे आना पड़ेगा और पॉपुलर रिसाइकलर व्यू को मुझे देना पड़ेगा लेआउट वाला। अभी लेआउट कैसे देते हैं, तो लेआउट देने का भी इजी है। ठीक है, क्या करो, पॉपुलर रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट। ठीक है, शॉर्ट सेट लेआउट टाइप। ठीक है, नहीं सेट लेआउट मैनेजर था, कहाँ गया सेट लेआउट मैनेजर। ठीक है, सेट लेआउट मैनेजर। ठीक है, सॉरी लेआउट लेआउट सेट है, डॉट सेट लेआउट मैनेजर। और क्या होगा मेरा लेआउट मैनेजर, मेरा मैनेजर ऊपर जो मैंने लिखा क्या लेआउट, कहाँ गया मेरा ये लीनियर लीनियर लेआउट। ठीक है, एंड ये हो गया। एंड देन इसके बाद इस तरीके से जो है मेरा लीनियर लेआउट सेट हो जाएगा। सो गाइस, सिंस इट्स 3:13, लेट जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक, कंटिन्यू, हम 1 घंटे से बैठे। सो अगेन वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर, हम लोग लेट्स मीट आफ्टर 10 मिनट। So we will start our lecture from 3:23 p.m. Okay. So till then, go and have break, guys. Okay. So let's meet after 10 minutes. ठीक है, चलो bye.
Okay, guys. So welcome back from the break. Okay, I think you had just got थोड़ा stretch out हो गए हम लोग. So coming back to the screen, यहाँ हम लोग छोड़ के गए थे. So we left at adding the linear layout. We left at adding the linear layout to our recycler view. So the error was that ना कि जो मैंने कोड लिखा था अपने एंड में, वो लिखा था मैंने फ्रैगमेंट में, जो हम पढ़ेंगे कल. तो फ्रैगमेंट में ऐसा था कि हम लोग फ्रैगमेंट का एक्टिविटी पास करते थे, लेकिन अगर आप लोग एक्टिविटी यूज कर रहे हो ना, अगर आप लोग एक्टिविटी यूज करो, सो यू डोंट नीड टू पास एक्टिविटी, यू नीड टू पास दिस. ठीक है, दिस क्यों? क्योंकि हम जो हमारा लीनियर लेआउट मैनेजर है ना, हमारा लीनियर लेआउट मैनेजर है, इसका जो पहला ये क्लास है, ठीक है, लीनियर लेआउट मैनेजर जो है ये एक क्लास है. इस क्लास के अंदर तीन चीज है, तीन पैरामीटर है. पहला पैरामीटर है कॉन्टेक्स्ट. दूसरा पैरामीटर ये है कि आपको जो लेआउट चाहिए, जो आपको लीनियर लेआउट चाहिए, उसका ओरिएंटेशन क्या है, आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए या आपको वर्टिकली चाहिए. तो हमने वो लिखा कि लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ऐसा आपने ना हार्ड कोडिंग का शब्द कि यहाँ मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए, यू नीड टू पास द हॉरिजॉन्टल ऑफ लीनियर लेआउट मैनेजर. ठीक है. एंड देन लास्ट था हमारा कि रिवर्स लेआउट. फॉर रिवर्स लेआउट मतलब क्या कि जो आपका लेआउट होगा, क्या आपको वो उल्टा चाहिए क्या, मतलब अच्छा ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन हमें उल्टा नहीं चाहिए, हमें सीधा चाहिए. तो ये लाइक रिवर्स लेआउट मतलब क्या हुआ ना कि वो लास्ट एलिमेंट का फर्स्ट दिखाएगा, ऐसा वाला वो रिवर्स हो जाएगा. लाइक कि आप जो है राइट टू लेफ्ट, लाइक लेफ्ट राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल नहीं करोगे, आप लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करोगे, तो हमें वो नहीं चाहिए ना, हमें नॉर्मल चाहिए. तो ये था तीन पैरामीटर लीनियर लेआउट के. तो हमने क्या किया, हमने लीनियर लेआउट का क्लास बनाया. हमने फिर क्या किया, हमने फिर वैसे ही सिमिलरली जैसा सेट हैज फिक्स साइज है ना, या सेट हैज फिक्स साइज है, वैसे सिमिलरली रिसाइकलर व्यू का एक क्लास, एक फंक्शन है, वो है सेट लेआउट मैनेजर. क्या है? सेट लेआउट मैनेजर. एंड ये सेट लेआउट मैनेजर रहता है, ये क्या लेता है, ये आपसे आपके लीनियर लेआउट लेता है. तो इस तरीके से हमने हमारा लीनियर लेआउट बनाया था. ओके. एंड देन हम आए एंड देन हम अपना ऐप रन करेंगे. लेट्स सी क्या आता है. रनिंग बिल्ड ऐप, वेटिंग फॉर टारगेट एंड इंस्टॉल. ठीक है. सो हमारी एक्टिविटी इंस्टॉल हो चुकी है. एंड अभी देखिए ये ड्रम रोल एंड या, तो देखिए अभी हमारा जो है, हमें हमारा हॉरिजॉन्टली भी हमारा आ गया. ठीक है, हमें हमारा हॉरिजॉन्टल भी रिसाइकल व्यू आ गया. एंड वी आल्सो हैव अवर vertical, we have our vertical recycler view as well as we have our horizontal recycler view. तो देखा, इस तरीके से जो है, इस तरीके से हम बनाते हैं रिसाइकलर व्यू. सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि कैसा क्या हुआ? या निधि, अदिति पाटिल एंड या वी आर दानियल, बाकी तो चलेगा क्या? नहीं ना, समझा ना आप लोगों को? सो ऐसे बनाते हैं ये हमारा क्या बोलते हैं ब्लॉग. ठीक है. अभी द नेक्स्ट थिंग इज अ बिग थिंग, तो थोड़ा काइंड ऑफ टफ समझने को, वो है इंटेंट. ठीक है, वो है ये इंटेंट. सो अभी इंटेंट क्या है? एंड इंटेंट इज अ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग सम एक्शन टू बी परफॉर्म. मतलब क्या कि इंटेंट, अगर सरल भाषा में बोलो ना, कि आपके दो कंपोनेंट है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके दो कंपोनेंट है. मेरा पहला कंपोनेंट हो गया मेरा ये जो मेरा हमारा लिस्ट व्यू था वो. ठीक है, मेरा एक लिस्ट व्यू हो गया. मेरे पास दो लेआउट है. ठीक है, मेरे पास पहला लेआउट है जिसके में सारे मेरे ब्लॉक की लिस्ट है. ऐसे मेरे पास दूसरा लेआउट है जहाँ पे एक फॉर्म आता है, जहाँ पे अगर मैं जो भी कुछ भी टाइप करूंगा, जिसे बोलते हैं ना कि ब्लॉग का फॉर्म है. एंड मेरे पास तीसरा पेज है जिसके अंदर है डिटेल. सो अगर मुझे एक लेआउट पेज से दूसरे लेआउट पेज में जाने का है ना, अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जंप मारने का है, तो मेरे पास इंटेंट, तो उस चीज को लाइक वो जंप मारने के लिए बोलते हैं इंटेंट. एंड बेसिकली इंटेंट क्या होता है ना, कि इंटेंट जो है दो कंपोनेंट के बीच में मैसेज पास करने के लिए भी यूज होता है. तो लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो मेरा मेन एक्टिविटी कंपोनेंट है, हाँ जो मेरा मेन एक्टिविटी डॉट कंपोनेंट है, अगर मुझे मेन डॉट एक्टिविटी कंपोनेंट से अगर मुझे ब्लॉक के डिटेल में जाने का, ठीक है, अगर मुझे मेन एक्टिविटी कंटेंट से जंप मारना है किसमें, ब्लॉक के डिटेल में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेन एक्टिविटी से ब्लॉक डिटेल का क्या पास करना पड़ेगा, मुझे पास करना पड़ेगा वो ब्लॉक का टाइटल, वो ब्लॉक का कंटेंट एंड वो ब्लॉक का इमेज. तो मतलब क्या होगा, मैं जो है हमारा जो इमेज है, हमारा ये जो हमारा ब्लॉक का लिस्ट है, मैं उससे डिटेल वाले को क्या मैसेज सेंड कर रहा हूँ, उसको मैसेज सेंड कर रहा हूँ कि देख भाई, ये पकड़ टाइटल, ये पकड़ कंटेंट, ये पकड़ इमेज, देखो ये तीन चीज यूज करना है. डिटेल वाला भी बोलेगा ठीक है भाई मैं समझ गया. तो
ये होता है इंटेंट, ठीक है। सो इंटेंट इज नथिंग बट एंटर इंटेंट इज अ मैसेज दैट इज पास बिटवीन कंपोनेंट्स सच एज एक्टिविटीज, कंटेंट प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड सर्विसेज। ब्रॉडकास्ट रिसीवर सर्विस क्या होता है कि जैसा कि आप कभी कभार देखें ना कि गूगल इमेजेस का ना होता है कि शेयर, लाइक गूगल गूगल इमेजेस का ना होता है कि आप जो है अपनी फोटो जो हो वो आइदर व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो, आप अपनी इमेज को ट्विटर में शेयर कर सकते हो, है ना। तो मतलब क्या हुआ वहां पर भी जो है आपका जो ऐप है वो व्हाट्सएप उन सबसे बात कर रहा है, उन सबको बोल रहा है कि देख भाई, सुनो भाई लोग, ये चीज तुम्हें शेयर करना है। तो मतलब क्या हुआ, इंटेंट इज नथिंग बट जस्ट पासिंग अ मैसेज और इट इज सम एक्शन दैट विल बी परफॉर्म, ठीक है। एंड इंटेंट है ना दो टाइप के हैं, एक है आपका इम्प्लिसिट इंटेंट एंड दूसरा है आपका एक्सप्लिसिट इंटेंट। सो इम्प्लिसिट इवेंट क्या आता है ना कि ये इवेंट रहता है, इम्प्लिसिट इवेंट इंटेंट इज नथिंग बट इट इज एन इंटेंट दैट इज परफॉर्म बिटवीन योर ऐप and another app, ठीक है। It is often presenting as the activity from your application to other application। and दूसरा क्या हमारा explicit intent, ये एक्सप्लिसिट इंटेंट जो होता है ये आपके ऐप के अंदर बात करने के लिए काम आता है। लाइक आपका जो अलग अलग एक्टिविटी थे, अलग अलग एक्टिविटी बात करेंगे तो क्या हुआ, एक्सप्लिसिट इंटेंट जो हमारा सेकंड इंटेंट है। एंड अगर आपका एप्लीकेशन दूसरे वाले एप्लीकेशन से बात कर रहा हो तो क्या आता है, इम्प्लिसिट इंटेंट। समझा आप लोग इतना कि इम्प्लिसिट इंटेंट एंड एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है एंड इंटेंट क्या होता है, समझा ना। बस ये इतना सिंपल सरल भाषा में। एंड गूगल के जो था कोड है वहाँ पे लोगों ने इसको इतना डिफिकल्टली लिखा है, लोग ने इतने हार्ड सिंपल इंग्लिश में लिखा है लोग ने, लाइक हार्ड एंड सिंपल दोनों इंग्लिश है वो, लाइक सिंपल भी है लेकिन कुछ लोगों को हार्ड लगती है। तो ये मैंने थोड़ा सर्च करके मालूम पड़ा, जब मैं भी सीखा था इंटेंट तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगी थी, तो मैंने यहाँ पर जब मारा ना हाथ तो मुझे मालूम पड़ा कि इंटेंट इज नथिंग बट जस्ट passing the message between one activity to another activity, and also to navigate from one app to or navigate from one activity to another activity, ठीक है। सो आते हैं वापस से हम लोग हमारे एप्लीकेशन में। तो अभी तक जो हमारा ऐप था, आगे जाइए। अभी तक जो हमारा ऐप था इसका ना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बस एक ही एक्टिविटी थी, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेन एक्टिविटी जो है हमारा जो हमारा मेन एक्टिविटी है इसके ना अभी बस एक ही एक्टिविटी, लाइक हमारे पास मोर देन वन एक्टिविटी नहीं है। सो आपको इंटेंट समझाने के लिए मैं क्या कहते हैं, हम लोग अभी बनाएंगे क्या, हम लोग बनाएंगे हमारी स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। जो हमारा होता है स्प्लैश स्क्रीन, जो हमारा स्टडी में लिखा है सब लॉगिन करके, लाइक आपको इंटेंट थोड़ा बेसिक समझे उसके लिए हम पहले स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हम थोड़ा रेज करेंगे। एंड हम लोग थर्ड व्यू पे क्लिक करने पे जब डिटेल व्यू खुलेगा तो हम लोग वो देखेंगे यूजिंग इंटेंट, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए आप जो है आपका जो com.example.blog है इसमें क्लिक कीजिए, इसमें राइट क्लिक कीजिए एंड देन न्यू, एंड देन न्यू के बाद आप नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे देखो आपको दिखा है एक्टिविटी, दिखा है आपको दिखा एक्टिविटी, तो एक्टिविटी क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप एक्टिविटी आ जाएगा। आपको याद होगा जब हम अपना एप्लीकेशन बना रहे थे तो हमें वहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट दे रहा था, याद है ना, बेसिक एक्टिविटी था, वहाँ पे एम्प्टी था। तो ये चीज़ वही सेम है। सो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी, ठीक है। हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी। सो ये आपसे जो है आपका एक्टिविटी का नाम नाम मांगेगा। सो हम क्या कहते हैं, हम लोग इस एक्टिविटी को नाम देते हैं क्या, स्प्लैश, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। हम लोग नाम दिया स्प्लैश स्क्रीन। यहाँ पे नीचे एक बटन है, टेक्स्ट लिखा है कि डू यू वांट टू जनरेट अ लेआउट फाइल, what this will do is that it will also generate a layout file for this activity because we need our so yeah yes हमें इतनी हमारा activity, and also you can just name your layout file। So I will go with the normal one and then the package name and the source language and in Kotlin, ठीक है। Once all these things are verified and you are good to go, just click on finish। So once you click on this thing, you will see that your project will have a Gradle project thing and we have a new activity over here। तो ठीक है, यहाँ पर अगर हम आएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा बनने में क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बन रहा है। हाँ, सो ये बना एंड या तो एक बार जैसे आपका Gradle प्रोजेक्ट हो गया सिंक, you will see that you will have a new activity called the splash screen, and if you just go in your layout manager ना, so here you will see we will have a new layout called activity splash screen। सो इस तरीके से आप जो है एक नया एक्टिविटी बनाते हो। ओके, सो मूविंग ऑन। सो अभी क्या करना है हमें, लेट मी ऑल्सो ओपन हियर इन माय
tab so that I don't get any error while doing. हाँ, so अभी जो हमारा ये वाला इंटेंट रहेगा, तो अभी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होगा, so हम क्या चाहते हैं, हम चाहते ये है कि सबसे पहले हमारी स्प्लैश स्क्रीन दिखे, राइट। हम चाहते हैं कि पहले हमारा स्प्लैश स्क्रीन दिखे, उसके बाद हमारा जो है मेन एक्टिविटी दिखे। अब ये चीज़ का आप डिफाइन करते हो, तो ये चीज़ आप डिफाइन करते हो आपके मैनिफेस्ट का जो फोल्डर है ना, ऊपर जो मैनिफेस्ट का फोल्डर है, इसके अंदर वी हैव दिस एंड्रॉइड मैनिफेस्ट एक्सएमएल। तो याद होगा आपको, जो हमारा पहला वर्कशॉप था, तो मैं वहाँ पे मैंने कहा था कि ये होती है वो मेन फाइल, जहाँ पे आप बताते हो कि आपका एप्लीकेशन कैसे रन होगा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट। याद होगा आपको। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि जो लाइन नंबर 18 है ना, अगर आप मेरे साथ चल रहे होगे, तो आपका ये वाला ऐप एंड मेरा ये वाला ऐप का फाइल दोनों सेम ही रहेगा। सो लाइन नंबर 18 में यहाँ पे है ना इंटेंट फिलर, तो क्या करो, ये इंटेंट फिलर को उठाओ पूरा का पूरा, इसको कट करो, एंड देन यहाँ तो आप ऊपर देखिए कि जो आपकी जो मेन एक्टिविटी वाली ये क्लोज है, ठीक है, इसको ओपन करो। ठीक है, मैंने ओपन किया, एंड ये बाद में जो इंटेंट है ना, इसको यहाँ पे आगे पेस्ट करो, एंड एक्सपोर्टेड को जो है ना, देखो यहाँ पे एक्सपोर्टेड में एरर दे रहा है, तो एक्सपोर्टेड को फॉल्स से करो क्या, ट्रू करो। ठीक है, सो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये होगा कि जब भी आप अपना अभी ऐप खोलोगे ना, सो आपका मेन एक्टिविटी सबसे पहले रन नहीं होगा। आपका सबसे पहले क्या रन होगा, आपका सबसे पहले रन होगा आपका ये स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, सो अभी आ गया, तो अभी हमने हमारा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट और एक्सएमएल के साथ में चेंज कर लिया, और नेक्स्ट थिंग हमें यह है कि हम लोग हमारा जो है स्प्लैश स्क्रीन को बनाते हैं। तो स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनाएंगे ना, तो स्प्लैश स्क्रीन बनाने के लिए क्या करो, वापस से जाइए आप फिग्मा में। ठीक है, मैं आपको जो है फिग्मा की लिंक शेयर करता हूँ, लेट मी एक्टिवेट माय फिग्मा। तो मैंने जो है पहले से ही प्री डिफाइन मैंने एक इमेज बना के रखा था, ताकि हमारा जो काम हो जल्दी फटाफट हो। सो लेट मी शेयर दैट थिंग विथ यू। ठीक है, सो मैं यहाँ आया इसमें, हाँ, सो यहाँ पे जो है आपको दो ट्विटर का दिखेगा। मैं लेट मी जस्ट शेयर दिस विथ यू गाइस। ठीक है, टाइम शेयर एंड anyone with link can view, copy the link and I have shared the link with you guys। ठीक है, तो आप आइए यहाँ पे, आप इस फिग्मा में आइए, एंड देन सेलेक्ट जो भी आपको अच्छा लगे, लाइक दोनों सेम ही है, तो मैं जो है ट्विटर पोस्ट करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। तो जो आपका ऊपर वाला जो है ये प्रोजेक्ट, ठीक है, जो मेरा मेन फिग्मा का है, ये वाला क्या बोलते हैं, क्या बोलिए, फ्रेम, कोई भी एक फ्रेम को सेलेक्ट कीजिए। फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन एक्सपोर्ट ट्विटर पोस्ट। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करने के बाद जहाँ भी आपको सेव करना वहाँ पे सेव करो। मैं सेव करूँगा अपने डेस्कटॉप में कैसे सेव करूँगा, मैं इसको डेस्कटॉप में सेव करूँगा ना, डेस्कटॉप को ऐसे भी डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ मैं हैज़ अ लेट्स से स्प्लैश लोगो। ठीक है, एज अ स्प्लैश लोगो। ठीक है, स्प्लैश लोगो मैंने किया एंड देन सेव। तो ये सेव करने के बाद मेरा आ गया होगा। ठीक है, एंड देन वही सेम खाता, आप अपना फाइल एक्सप्लोरर खोले, जैसे ओपन या फाइल एक्सप्लोरर, गो टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप अपना ऑब्वियस यहाँ पे प्रोजेक्ट खोलिए। ठीक है, बाजू में आप अपना प्रोजेक्ट खोल के रखिए, यहाँ पे आपका फाइल एक्सप्लोरर खुला है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस इन, कहाँ पे, इन अवर ड्रॉएबल। ठीक है, यहाँ पे जिससे मैं रीफैक्टर करूँगा, मैं रीफैक्टर किया एंड नाउ इट इज इनसाइड। सो ये क्या बता रहा है, सुंदर है ये। सो कभी कभार जो है आपके जो है इमेजेस में एरर आएगा, और एरर ये रहता है ना कि इमेज ड्रॉएबल के जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर जितना भी आपका रिसोर्स फाइल होती है, ये एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप जो है इन सब का नाम जो है स्मॉल में रखो, लाइक डोंट कीप एनी कैपिटल। अभी रीजन की जो मैंने कैपिटल रखा था कि आपको मतलब कि आप अगर फ्यूचर में अगर आपसे कभी गलती हो जाए, सो हाउ यू कैन चेंज इट। तो चेंज ऐसे करने का, राइट क्लिक ऑन दैट इमेज, क्लिक ऑन गो टू रीफैक्टर एंड देन क्लिक ऑन रीनेम। कहाँ से क्या, मैं यहाँ पे आया, राइट क्लिक, रीफैक्टर एंड देन रीनेम। रीनेम करने के बाद रीनेम कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इसे करूँगा मैं सीधा स्प्लैश लोगो। ठीक है, keep everything lower case, don't put anything in upper case and then click on refactor। तो देखिए मैं refactor क्लिक करूँगा, ये पूरी मैं एप्लीकेशन में refactor कर दिया। ओके, सो नाउ वी आर गुड एट दिस। तो मैं वापस से
once, okay, so guys, if you're done with exporting the image, just type yes in the chat box so that I can proceed. Like इतना सा काम हो गया ना कि आपने एक्सपोर्ट कर लिया इमेज को एक्सपोर्ट करने के बाद आपने इसको एंड्रॉइड स्टोरी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया. ठीक है. सो एक बार ये हो गया ना, क्या करेंगे हम लोग. नाउ लेट्स रीडायरेक्ट टू अवर एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन. हाँ, इधर पे हमें क्या चाहिए, वी नीड अवर इमेज व्यू. ठीक है, मैं इमेज व्यू लाया, इसे यहाँ पे लाया एंड देन इसी में इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप किया. तो यहाँ पे देखिए वो मुझे पूछा कि भाई देखो कौन सा इमेज को दिखाना है. ये देखो इससे मेरा रिसोर्स फाइल खोल दिया. तो याद है आपको हम लोग ने ऑन बाइंड व्यू होल्डर के नाम ने किया था डॉट स्टैट इमेज रिसोर्स. तो वो एक्चुअल में ये था. ठीक है. तो अब मुझे कौन सी इमेज चाहिए, मुझे इमेज चाहिए मेरा ये स्प्लैश लोगो. तो मैं इस पर क्लिक करूंगा. यहाँ पे आपको बताएगा कि ये टाइप पीएनजी है, कॉन्फ़िगर ऑर्डर करना सब एंड क्लिक ऑन ओके. ठीक है. जैसे ही आप ओके में क्लिक करोगे ये आपकी इमेज यहाँ पर आ गई. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरी इमेज को बीच में लाने का. तो अगर आपकी इमेज को बीच में लाने का है ना, तो क्या करो, उसको पूरे का पूरा ले आओ. सारे कंस्टेंट, टॉप कंस्टेंट दो, उसको बॉटम कंस्टेंट दो, उसे राइट का कंस्टेंट दे दो एंड उसे लेफ्ट का भी कंस्टेंट दे दो. ठीक है. तो ये कंस्टेंट दे दिया आपने. तो इससे क्या हुआ, आपका जो है इमेज आ गई बिल्कुल. लेकिन ये तो देखो ना, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, लाइक थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि पूरा का पूरा इमेज जो है एकदम स्ट्रेच आउट है. तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें इमेज को देना पड़ेगा पैडिंग. ठीक है, हमें इसको थोड़ा पैडिंग देना पड़ेगा. ठीक है, मैं करूँगा क्या, पैडिंग एंड पैडिंग दूंगा इसको हर तरफ से चाहता हूँ मैं कि इसे 10 dB की पैडिंग है. ठीक है. तो देखो अभी जब मैं 10 dB की पैडिंग किया सो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है. लाइक इसके बिना, लाइक अगर मैं इसको करूँ, कमेंट कैसे कहते हैं, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क. कमेंट कैसे देखो ना, कमेंट करने में कैसा पूरा स्क्रीन घेर कर लगा है. लेकिन हटाऊंगा इसको मैं, तो कैसा बीच में जो अंदर आया ना तो अच्छा लग रहा था. राइट. तो अभी ये इतना हो गया. अगर अभी मैं अपने एप्लीकेशन वापस से रीरन करूँगा, ठीक है, मैं एप्लीकेशन को फुल रीरन करूँ, लेकिन क्या होता है, हमारा ग्रेटर बिल्ड हो रहा है. ठीक है, इंस्टॉल हुआ. ठीक है. सो अभी जब मेरा एप्लीकेशन चालू हुआ तो आपने यहाँ पे दो चीज़ नोटिस किया होगा. दो चीज़ें नोटिस किया होगा आपने कि मेरा ब्लॉग ही लिख के तो आ गया. हाँ ठीक है, चलेगा. लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्लॉग ही जो है ये दूसरे स्क्रीन में जाना है. देखो ना, ये आगे यहाँ पर अटक गया. और साथ में सेकंड थिंग ये नोटिस किया होगा कि ये ऊपर अजीब सा मेरे को नया बार आ रहा है. हमें कोई नया बार नहीं चाहिए. तो उसमें क्या करने का, गो बैक टू योर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल. इधर पे आई थिंक कहाँ था, तीन लोगों मीन एक्टिविटी टू 4.1 करना है. आपको ऊपर लिख के आता था कि डू यू वांट. हाँ. सो उसके लिए मैंने बता रहा मुझे कि स्प्लैश फील्ड में मैं आया. यहाँ पे आके मुझे है ना मेरा ये इस एक्टिविटी का मुझे थीम लेना पड़ेगा. थीम थीम का होता है मतलब कि एंड्रॉयड के अंदर जो है ना पहले से कुछ प्री डिफाइंड थीम है. तो मेरा थीम जो मुझे चाहिए ना, जो मुझे थीम चाहिए वो है नो एक्शन में नहीं, वो है थीम की @style. ठीक है, @style और स्लैश थीम डॉट डिजाइन डॉट. देखिए यहाँ पे अगर जिसमें में लिखा है @style स्लैश थीम, तो देखिए यहाँ पे मुझे बहुत सारे पहले से आ गए. तो ये जो है ये कुछ थीम्स है जो पहले से आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में प्री डिफाइंड है. जैसे आपके पास है डार्क एक्शन बार, जहाँ पे आपका एक्शन बार डार्क रहेगा. वी हैव डायलॉग अलर्ट एंड ब्ला ब्ला. हाँ, हमें वो चाहिए, हमें चाहिए नो एक्शन बार. तो नो एक्शन बार क्या होता है ना कि ये जो आपका ओपन है ना, ये जो ऐप बार है इसको बोलते हैं एक्शन बार. सो ये @style थीम डॉट ऐप कंप्यूटर डे नाइट नो एक्शन बार जो है ये, अगर आप कोई भी एक्टिविटी के अंदर डालेंगे ना, अगर आप अपने कोई भी इस एक्टिविटी के अंदर ये थीम डालेंगे तो ये उस एक्टिविटी के अंदर आपका एक्शन बार को गायब कर देगा. आप एक्शन बार देख ही नहीं पाओगे. तो हम क्या करें, हमसे रीजन करते पहले. ठीक है, मैं रीजन किया एंड ग्रेटर बिल्ड चल रहा है मेरा. ठीक है, अभी मेरा ऐप इंस्टॉल हो रहा है. सो पहले मुझे एक्शन बार दिख रहा था एंड अभी मुझे एक्शन बार नहीं दिख रहा. क्यों? क्योंकि मैंने पहले से थीम लिख के रखा कि मुझे एक्शन बार नहीं चाहिए. सो
अभी हमारा एक एरर सॉल्व होगा, दूसरा ये सॉल्व करना है कि यार ये दूसरी स्क्रीन पे क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा है। तो दूसरी स्क्रीन में कैसे शिफ्ट करते हैं, दूसरी स्क्रीन में शिफ्ट करते हैं यूजिंग इंटेंट। ठीक है, सो क्या करना पड़ेगा मुझे, मेरे को आना पड़ेगा स्प्लैश स्क्रीन में। और दूसरी बात, इंटेंट जो है ना एक ऐसा एप्लीकेशन है, इंटेंट जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इनिशिएट होता है आइदर ऑन बटन के क्लिक पे। अगर देखो ना, आप देखे हो ना कि आपका जो इंस्टाग्राम पे होता है, जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो जब आप कोई भी एक बटन में क्लिक करते हो तो वो उस पेज पे खोलता है, राइट। लाइक वो जो है जैसे आपने अगर आप नीचे जो थ्रेड है, नीचे हमारा एक्शन बार होता है, अगर आप उस एक्शन बार में से किसी एक में जब क्लिक करते हो तो वो उस क्लिक करने के बाद ही उस पेज में ले आता है, हाँ ना। सो मतलब क्या कि इंटेंट जो रहता है ना, कि यूजुअली इंटेंट को इनिशिएट करने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है आइदर आप कोई भी एक बटन लो, ठीक है, आप कोई बटन लो या कोई टेक्स्ट लो, उसके अंदर हर व्यू के अंदर एक प्रॉपर्टी रहती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, आप उस सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर आप अपना इंटेंट लिखो। या दूसरा क्या होता है कि आप जो है इंटेंट को लिख दो डिले के अंदर। और याद रखना गाइस, और एक बार बताना भूल गया, इंटेंट को इनिशिएट करने के लिए एक है क्या बोलते हैं, एक जो है ना वो है हमारा फंक्शन है, वो है स्टार्ट एक्टिविटी। ठीक है, ये है हमारा स्टार्ट एक्टिविटी। ठीक है, ये स्टार्ट एक्टिविटी जो होता है ना, ये होता है फंक्शन जो आपका इंटेंट को इनिशिएट करता है। इंटेंट क्या था, इंटेंट इज नथिंग बट जस्ट अ मैसेज। इंटेंट क्या है, एक मैसेज है। लेकिन वो मैसेज, और वो मैसेज के अंदर क्या क्या रहता है ना, उस मैसेज के अंदर रहता है दो बातें। एक रहता है कि कौन सा कंटेंट यहाँ से वहाँ जा रहा है, एंड दूसरा रहता है कि जो इंटेंट है ये वाला, लाइक इमेजिन करो कि निधि एक इंटेंट है और एक इंटेंट में हो, ठीक है ना। निधि एक एक्टिविटी है एंड मैं एक एक्टिविटी हूँ एंड यश इंटेंट है। तो यश के पास क्या रहेगा, यश के पास देखिए दो प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी ये रहेगा कि जो इंटेंट है, अगर जब भी यश को कॉल करोगे तो यश किसके पास जाएगा, वही रहेगा। अगर इमेजिन करो मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्टिविटी से निधि की एक्टिविटी में जाए, तो यश यश क्या करेगा, यश कहना देगा कि ठीक है कौन सा मैसेज पास होगा, लाइक मैं निधि को कौन सा मैसेज दूंगा वो रहेगा। एंड सेकंड थिंग कि ये इंटेंट किसके पास जाए। सो इंटेंट कैसा रहता है ना, अगर दिखाता हूँ। तो पहले हम बनाते बनाते वेरिएबल इंटेंट करके। ठीक है, हम पहले बनाते हैं वेरिएबल ऑफ इंटेंट। ठीक है, हम पहले बनाते हैं वेरिएबल इंटेंट एंड ये क्या देगा, ये देगा हमारा इंटेंट की जो क्लास रहेगी, बड़ी वाली इंटेंट, हमारी इंटेंट की क्लास रहेगी। अरे यार मैं टैब इंटेंट, ठीक है, इसके अंदर इंटेंट आया। इसके बाद दो एक्टिविटी थी, एक होता है कि पैकेज कॉन्टेक्स्ट। तो पैकेज कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा मेरा, दिस रहेगा एंड देन कॉमा, और कौन सी एक्टिविटी में जाना है, जो इंटेंट रहेगा, ये इंटेंट हमारे साथ कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, उस एक्टिविटी का नाम। तो मेरी कौन सी एक्टिविटी है, मेरी एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी। ठीक है जी। एंड रिमेंबर गाइस, आपको जो है लेआउट का नाम लेने का नहीं है, उस लेआउट के रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी है उसका नाम देना है। तो मेरा कौन सा दूसरा एक्टिविटी है, मेरी दूसरा एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी, राइट। मैं क्या चाहूंगा, मैं करूंगा स्प्लैश स्क्रीन का लिखूंगा मेन एक्टिविटी। ठीक है, मेन एक्टिविटी आ गई, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, वो बोला है क्लासिफायर मेन एक्टिविटी डज नॉट हैव अ कंपेनियन ऑब्जेक्ट। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए राइट टाइप 2 टाइम डबल कोलन क्लास डॉट जावा, क्लास डॉट जावा। तो ये होता है तरीका, ये होता है तरीका। कोई भी एक जो भी एक एक्टिविटी होती है ना, अगर आपको कोई भी एक्टिविटी के क्लास को बुलाने का ना, हमारे केस में दो एक्टिविटी कौन सी है हमारी, एक है हमारी स्प्लैश स्क्रीन, दूसरी हमारी मेन एक्टिविटी है। तो अगर मुझे कोई भी दो एक्टिविटी को बुलाने का है ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा वो एक्टिविटी का नाम एंड देन डबल कोलन एंड देन क्लास डॉट जावा। ठीक है, ये तरीका है कोई भी इंटेंट के अंदर एक्टिविटी को डिफाइन करने का। तो अभी हमने एक्टिविटी बना लिया। अभी एक्टिविटी बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार एक्टिविटी के अंदर लिखना पड़ेगा क्या, इंटेंट। ठीक है, तो स्टार एक्टिविटी जो है ये फंक्शन, ये क्या रहता है पैरामीटर, ये पैरामीटर में रहता है इंटेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटेंट बनाते हैं। लेकिन अभी एप्लीकेशन रन मत करना, रुको। इसका अगर जब भी हमारा स्प्लैश रन होगा ना, तो क्या होगा, हमारी स्प्लैश स्क्रीन का जो है लेआउट, जैसे यहाँ पे देखो ना कैसा हमारा ये जो ब्लॉगी लिख के आता है। सो ये ब्लॉगी को दिखाने से पहले ही जो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आया ऑन की रन हुआ, उसने सेट कंटेंट यूज किया, ठीक है। हाँ, अभी अगर हम बात करें ना कि हमारा ये अगर इस कोड को रन करें तो कैसे रन होगा, हमारा ऐप रन हुआ, एंड्रॉइड ने हमारा एप्लीकेशन कंपाइल किया, वो आया, उसे वो गया एंड्रॉइड मैनिफेस्टो एक्सएमएल फाइल में, उसने देखा कि ठीक है मैं यहाँ पर आया,
यहाँ पे मेरा मेन इंटेंट फिलर कौन से लाचा, वो क्या करेगा, उसने बोला ठीक है हाँ मेरा स्प्लैश स्क्रीन वाला जो है मेरा एक्टिविटी इसके लिए मेरा इंटेंट है, तो वो जाएगा स्प्लैश स्क्रीन के पास, स्प्लैश स्क्रीन बोलेगा ठीक है ऑन, जैसे स्प्लैश स्क्रीन इनिशिएट होगा ऑन क्रिएट वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा, और ऑन क्रिएट कॉल हुआ तो इसने सेट कंटेंट व्यू किया, एंड यूजर को ये वाली स्क्रीन दिखाने से पहले ही वो क्या करेगा, वो सोचेगा ठीक है भाई ये इंटेंट बोल रहा है, तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी भी नहीं, एंड आप ऑटोमेटिकली या ट्रांसफर हो जाएगा कौन से जो हमारा ब्लॉग जो मेरा एक्टिविटी था ना, अब डायरेक्टली उस पर चल जाओगे स्क्रीन। हमें चाहते नहीं, हमें चाहते हैं कि पहला 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए हमारा रुके, ये हमारे ब्लॉग जैसा लिखा है 2 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद वो जो है हमारा मेन एक्टिविटी कॉल लो, राइट है ना। तो अब ये कैसे करते हैं, ये करते हैं हम यूजिंग हैंडलर। तो लाइक मतलब क्या चाहिए मुझे, इन शॉर्ट मुझे ये चाहिए कि जब भी मेरी स्प्लैश स्क्रीन कॉल हो मुझे 3 या 2 सेकंड का डिले मिले, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये मेरा इंटेंट कॉल हो, राइट। तो अब ये कैसे करेंगे, ये करेंगे हम यूजिंग हैंडलर। अभी हैंडलर एक क्लास है जो डिफीट हो गई है, लेकिन मैं अभी भी यूज करता हूँ। हैंडलर डॉट पोस्ट डिले, ठीक है, हैंडलर डॉट पोस्ट डिले, एंड इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर पोस्ट डिले के अंदर 2 चीज आती है। पहला चीज ये है कि किस चीज को डिले करना है, एंड देन सेकंड चीज होती है कितना डिले करना है। सो इसके अंदर 2 पैरामीटर है, पहला पैरामीटर रहता है कि कौन सा कोड को डिले करना है, एंड सेकंड पैरामीटर रहता है कि कितने मिली सेकंड के लिए आपको डिले करना है। सो अगर 3 सेकंड के लिए डिले करना है तो यू नीड 3000 मिली सेकंड, ठीक है। तो देखो डिले इन मिली, तो 3 सेकंड हुआ 3000, 2 सेकंड हुआ 2000, एंड दैट्स ऑल। तो अभी ये हो गया। अब मुझे क्या डिले करना है, मुझे डिले करना है ये वाला फाइल, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करो एंड देन ऐसे कट पेस्ट में करो, प्रेस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अपर एरो की, जैसे आप अल्ट प्लस शिफ्ट अपर एरो की करोगे ना, वो आपकी जो कोड रहेगा, जो हाईलाइटेड कोड रहेगा, वो उसे ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे मूव करता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्वियस एक बार दबाया तो एक बार ऊपर गया, एक अल्ट शिफ्ट प्लस अपर एरो की तो ऊपर ले गया, अल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो की तो वो डाउन ले गया, ठीक है। तो ये ऐसे जो है अपनी लाइन को हिलाते मूव करते हो इन एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड अगर मुझे इसको थोड़ा इंटेंशन देने का लगे, मुझे इसे एक टैप देने का, और तो क्या करो, इसको पूरे को हाईलाइट करो एंड देन प्रेस टैप, इसी टैप में करोगे ऑटोमेटिकली आपको इसको टैप दे देगा, ठीक है। सो अभी देखो, अभी हम रन करूँगा तो देखो मेरे कैसा आएगा एप्लीकेशन। सो मेरा एप्लीकेशन गेट बिल्ड हो रहा है, ठीक है, मेरा गेट बिल्ड हुआ, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। देखिए मेरा ब्लॉग ही लिख के, देखिए ब्लॉग ही लिख के आया, 1 2 3 सेकंड हो गए, एंड जब मारेगा सेकंड में, ठीक है। 3 सेकंड के लिए डिले हुआ, 3 सेकंड डिले होने के बाद ऑटोमेटिकली वो मेरे इस वाले एप्लीकेशन में आ गया। सो आप लोगों को समझा कि इंटेंट क्या होता है एंड इंटेंट कैसे यूज करते हैं। तो इंटेंट यूज करने का 2 तरीका है, आइदर आप उसे डिले करो, आइदर आप उसको यूज करो इन साइड द सेट ऑन क्लिक। एंड इंटेंट क्या होता है, इंटेंट इज नथिंग बट जस्ट अ खबरी, और खबरी के बाद क्या, खबरी के बाद 2 चीज रहती है, खबरी के बाद 2 इन्फॉर्मेशन रहती है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन पास करना है, एंड दूसरा कि किसको इन्फॉर्मेशन पास करना है, ठीक है। सो इंटेंट ये होता है। सो समझा आप लोग को, लाइक कुछ लोग हैं मुझे पर्सनली कहा था कि समझाने के लिए इंटेंट क्या है, तो उन लोगों को समझा कि इंटेंट क्या होता है। हम लोग यस लिख दो चैट बॉक्स में। मेरी आवाज आ रही है ना, या फिर मैं अभी तक अकेले बोल रहा था। ठीक है, हाँ चलो समझो। हाँ सो आज के लिए इतना ही, 4 बज गए हैं, ठीक है। सो या सो ओके, थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टुडे। हम लोग जो है कल टुमारो विल बी अवर फाइनल डे। टुमारो हम लोग जो है आई विल टीच यू गाइस हाउ टू यूज फ्रैगमेंट, हाउ टू यूज अ नेविगेशन चैट कंपोनेंट, एंड देन वी विल रैप अप विद अवर ब्लॉग एप्लीकेशन, ठीक है। एंड गाइस अगर आप लोग इस पूरे वर्कशॉप को फॉलो अप कर रहे हो, even for you guys who are on the other side of YouTube, please do this application, क्योंकि ये blog app जो होता है, you can add this app in your resume or you can add this blog application in your portfolio, क्योंकि you are creating a real app project, आप लोग एक blog app बना रहे हो, blog app बनाना तो hard रहता है। so once so मैं I will expect कि जो लोग complete करेंगे application ना, so you just go in LinkedIn, take the screenshot of this app and then हमें tag कर दो LinkedIn के अंदर, लाइक वी आर गूगल डेवलपर स्टूडेंट ऑफ AIKDC को टैग कर दो, एंड देन हम लोग आके वहाँ पे लाइक दे देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर माय साइड, इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। Daniel,
Can you please stop the recording?